Om Shri Sai Ram. My most humble pranam at the divine lotus feet of our beloved Bhagwan Shri Satya Sai Baba and my loving Sai Ram to all. We, the participants of second batch of Shri Satya Sai National Leadership Program for Self-Transformation Batch 2021 Mahila Wing Goa, welcome you all for our workshop on wholesome parenting, strong bonding, perfect family. Last week, we had a session on how to assist the parents to raise their child as an ideal human being. Today is our third session on to help parents in understanding the methods of boosting child's self-esteem. We have with us today Dr. Shruti Kamath and Akshay Kamath. Dr. Shruti Kamath have done her BHMS from CMP College, Mumbai with 12 years of experience across India and South Africa. Dr. Shruti is art-based therapist from WCCLF Pune using art form for therapy for children with special needs. She is certified in applied psychology and psychiatry. She is trained Bharatanatyam dancer, singer and veena player. Akshay Kamath. Brother Akshay has completed his BCom and MBA from Sri Satya Sai Institute of Higher Learning, and he has spent 7 years in Swami's University from 2003 to 2010. He has a gold medalist in both the disciplines, that is in BCom and MBA. He has 12 years of corporate finance experience across India and South Africa. Currently, AVP Finance in Stripe, an education technology company. He is practicing life coach over last 5 years with over 100 youth and adults being mentored on regular basis across the sphere of practical and balanced life, happiness, relationships, career and emotional wellness. Together, Brother Akshay and Dr. Shruti have founded Ask Shruti Kamath, a startup digital initiative providing holistic health solutions to over 1,500 plus patients across the globe. Under this initiative, they provide homeopathy, therapy, counseling, and have conducted over 75 workshops on various topics across India and South Africa. They both have completed the 9 years of Bal Vikas course and have been a part of the cultural wing, participating and directing Ashadi dramas since 1998 in the Divine Presence. Dr. Shruti has been Bal Vikas teacher in South Africa, teaching kids of around 6 nationalities. She was a part of National Educational Council to assist with formulating the structure of the 3 Sai schools. Brother Akshay served as a National Youth Coordinator of South Africa in 2016-17. There is one request for parents. If you have any questions in between, then please put it in chat box. Now, I request Dr. Shruti and Brother Akshay to please take over the session. Jai Sai Ram. साई राम. थैंक यू साई प्रीति, आपने इतना लंबा इंट्रोडक्शन दिया. इतना तो हमने इतना जिंदगी में इतना काम नहीं किया है जितना आपने इंट्रोडक्शन किया है. सो पहले तो थैंक यू. साई राम एवरीवन. आप एक सैटरडे को शाम को जिधर आपको कहीं आराम से घूमना चाहिए, जैसे मीरामार या कैलनगुड बीच कहीं पे आराम से, वो भी एक बैंक हॉलीडे पे आप हमारी बातें सुनने के लिए आए हो, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया. हमारा एक ही छोटा रिक्वेस्ट रहेगा कि, और हमने ये आपके कोऑर्डिनेटर्स को भी बताया था
कि प्लीज ये इंश्योर कीजिए कि आपके बच्चे इस सेशन को सुन नहीं रहे हैं बस, और बाकी सब चलेगा। हम आराम से एक बहुत अच्छा पीसफुल सेशन करेंगे। एकदम चिल रहिए, जैसे हम बोलते हैं चिल रहिए, कोई टेंशन की बात नहीं है। ऐसा कोई हम कोई ज्ञान भी बांटने नहीं वाले हैं, हम खुद पेरेंट्स नहीं हैं, तो हम अपने एक्सपीरियंस से तो बात कर नहीं सकते। आप अपने पेरेंट्स के, आप अपने बच्चों के बेस्ट पेरेंट्स हो, ये हमारा, ये हम हमेशा समझते हैं कि ये सत्य है, ठीक है। पर इतना ही मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आप, मींस मेजॉरिटी आपके सबके कैमरास बंद हैं, प्लीज रिक्वेस्ट करता हूं कि आपके बच्चे इस चीज को सुन नहीं रहे हो, क्योंकि मैं ये भी चाहता हूं कि ये सारे आपके मींस क्वेश्चंस और सारे पर्सनल है। तो मैं ये नहीं चाहता कि बच्चे सुने, और हम अगर कोई एडवाइस भी दें तो ऐसी चीज ना हो जो बच्चों ने सुनना नहीं चाहिए। बस यही एक रिक्वेस्ट है, बाकी बाकी भगवान जैसे चाहे वैसे चलते रहेगा। सॉरी, समबडी रेज, किसी ने हैंड रेज किया है, कोई डाउट है कुछ? चालू रखें, ठीक है, चलाते हैं। यस, किसी ने हाथ रेज किया था क्या? सॉरी, कि हम कोई एडमिन, हाँ एडमिन कोई अगर संभाल रहे हैं तो जस्ट प्लीज हेल्प कीजिए कोऑर्डिनेट करने में सेशन को, कि अगर किसी को कुछ सवाल या कुछ है तो जस्ट हमको बता सकते हैं। सॉरी, ठीक है। तो हम ये प्रेजेंटेशन थोड़ा शुरू कर लेते हैं, एंड देन जैसे चलता है, प्रेजेंटेशन इंग्लिश में है, हम बात इंग्लिश हिंदी मिक्स करके करेंगे। और आपको क्वेश्चंस किसी में मराठी में भी पूछना है, प्लीज पूछ सकते हैं, जितना समझ सकते हैं उसके बेसिस पर हम आंसर्स देते जाएंगे। थैंक यू। आप जितना पूछेंगे, हम जितना बात करेंगे आपस में, उतना हम मतलब और लाभ पड़ेगा, तो आराम से बिना कोई झिझक प्लीज। हाँ, आशा है आपको स्क्रीन दिख रही है। तो बेसिकली सेशन जब ये टीम हमारे पास आई थी कि थोड़ा सा बात कर सकते हैं, थोड़ा डिस्कशन कर लें, तो मेजर टॉपिक था चिल्ड्रन सेल्फ एस्टीम। तो सेल्फ एस्टीम का मतलब है कि बच्चों का सेल्फ कॉन्फिडेंस, उनका क्या बोलते हैं, सोसाइटी में खुशी खुशी रहना, आराम से टोटली आगे देख के प्लान्ड फ्यूचर लेके सक्सेसफुल होने का प्लान बनाना। ये हर बच्चा अपने हर माँ और हर बाप अपने बच्चों के लिए ये ड्रीम सोचता है। एंड इन द सेम वे भगवान हम सबको एक एक को ऐसे ही हाथ में उठा के, उनके लिए भी यही ड्रीम है कि हम जैसे हम सब उनके बच्चे हैं, हम भी ऐसे ही सही राह पर चलते जाएं। तो बी कंफर्टेबल, अपने मतलब अपना खुद का वर्थ समझने के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए। हाँ। जी, तो ये जस्ट क्विकली एक छोटा डिस्क्लेमर है, हर मूवी के स्टार्ट में भी डिस्क्लेमर रहता है कि बिंदास क्वेश्चन पूछिए, पर ऐसे सवाल पूछिए कि सबको लाभ हो। ये हम बोल रहे हैं कि हम जो बता रहे हैं ये एक तरफा व्यू है हमारा, ऐसा नहीं कि यही सत्य है और यही है। हर पेरेंट्स और हर चाइल्ड के अलग अलग चैलेंजेस रहते हैं। सो हो सकता है कुछ चीजें आपको समझ में नहीं आए या बोले ये सही नहीं है, तो ठीक है, नो प्रॉब्लम, पर हम इसको प्यार से डिस्कस भी कर सकते हैं। एंड प्लस ये मैं वही बोल रहा था कि हम खुद पेरेंट्स नहीं हैं, बट हमारे हमने जो छोटा सा एक स्टार्टअप जैसे शुरू किया, उसमें 500 प्लस बच्चों के और पेरेंट्स के साथ हमारी काउंसलिंग चलती रहती है। प्लस लकीली स्वामी की दया से मुझे उनके कॉलेज में 7 साल पढ़ने का मौका मिला, जो एक खुद ही एक पेरेंटिंग का सेपरेट कोर्स ही है, कि भगवान सत्य साई बाबा ने डिजाइन किया हुआ सिस्टम जो है एक हॉस्टल लाइफ का पुट्टपर्ती में, उससे इतने सारे लेसन्स आते हैं फॉर कि एक पेरेंट अपने बच्चों का कैसे ख्याल रख सकता है। जैसे कॉलेज में हमको भगवान ने हमारा कैसे ख्याल रखा, तो उसके भी पार्ट्स है। तो ये सब मिला के हमने ये सेशन थोड़ा तैयार किया है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो पहले एक छोटा सा आइस ब्रेकर, मीन्स हम लोग आइस ब्रेकर क्या बोलते हैं कि ताकि आप लोग सब थोड़ा पार्टिसिपेट कर पाए। अगर हो सकता है आपको कैमरा ऑन कर सकते हो तो ऑन कीजिए। हम जस्ट एक क्विकली एक छोटा सा आपको बताते हैं कि ये क्या है, राइट। तो इस चीज का नाम, इसको हम हेडोनोमीटर बोलते हैं। इट्स कॉल्ड अ हेडोनोमीटर। हेडोनोमीटर का मतलब है इट काइंड ऑफ मेजर्स हैप्पीनेस, राइट। हैप्पीनेस का मेजरमेंट कैसे करता है, जैसे फेसबुक में ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है, ये हेडोनोमीटर। तो जैसे आज गांधी जयंती है तो सब लोग हैप्पी गांधी जयंती, रिमेम्बरिंग यू बापू, वेरी हैप्पी, ये सब बोलते हैं, स्माइलीज, ये सब बोल रहे हैं। पर कुछ दिन पहले अगर एक कहीं पे यूएस में शूटिंग हुई थी तो सब लोग वेरी सैड टू सी, वेरी अनहैप्पी टू सी। तो आप ये स्क्रीन पे भी देखोगे तो आपको एक ग्राफ दिखेगा। मदर्स डे है तो ग्राफ थोड़ा ऊपर जाता है, पर कहीं पे शूटिंग हुई, कहीं पे कोई एक्सीडेंट हुआ तो ये ग्राफ नीचे चला जाता है।
तो ऐसे ही हमने क्या किया है, हम ये देखना चाहते हैं कि आप सबके साथ क्या हम ये सिमिलर ऐसा ही एक्सरसाइज लाइव कर सकते हैं क्या, हेडोनोमीटर करके। तो अगर आप अपने उसके लिए, कैमरा स्विच ऑन कर सकते हैं तो यूजफुल रहेगा, थोड़ा मजा आएगा। हम भी देखना चाहते हैं कि आपके चेहरे भी देखना चाहते हैं, हम क्यों अपने चेहरे दिखाते रहें। तो अनलेस आपको कोई रूल है कि आप कैमरा स्विच ऑन नहीं कर सकते, वरना यस, थैंक यू शर्मा जी। और भी कोई, सब लोग ऐसा बहुत शर्मा रहे हैं क्या? नहीं, ठीक है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो हम आप अपने स्क्रीन के साथ मींस बीच में ही खेल लीजिए जैसे हम दिखाते हैं। तो श्रुति आप यू कैन टीच दैम। सो इसमें बहुत सिंपल है कि मैं जो एक फॉर एग्जांपल मैं तुम्हारे साथ खेलूंगी। फॉर एग्जांपल मैं कोई शब्द बोलूंगी, वो शब्द सुनकर तुम्हारे अंदर कौन सा इमोशन, कौन सी भावना पैदा होती है। जैसे इफ यू आर हैप्पी, मैंने फॉर एग्जांपल बोला कि कोविड, राइट। तो अभी फॉर एग्जांपल तुम्हारा जो ये मेरा नॉर्मल न्यूट्रल इमोशन है, और अगर मैंने बोला कोविड, और अगर कोविड सुनकर तुमको खुशी होती है क्योंकि कोविड के बाद ऑनलाइन स्कूल बढ़ गया, ऑनलाइन स्कूल शुरू हो गया, बच्चे घर पे हैं, ट्रैवल नहीं करना पड़ता, तो फिर यू माइट बी हैप्पी। तो उससे आपको खुशी मिले तो आपको हाथ ऊपर करना है। और अगर कोविड सुन के कोई और को मतलब दुख होता है कि मैं फ्रेंड से नहीं मिल सकता, तो आपको दुख होता है, दुकान बंद हो गए या घूम नहीं सकते, हाँ, तो ये नीचे हाथ चला जाता है। हाँ, तो आपको वो पर्टिकुलर शब्द सुनकर आपको क्या लगता है? खुशी होती है, दुख होता है। खुशी होती है, बहुत खुशी होती है तो और आराम से ऊपर कर सकते हो, और थोड़ी खुशी होती है तो थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए, ठीक है। जस्ट अ स्मॉल 2 मिनट का काम है, कोई हम ऐसे कोई एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, कोई एग्जाम कुछ नहीं ले रहे हैं, सिर्फ फन, जस्ट फॉर फन। सो फॉर एग्जांपल लेट्स स्टार्ट विद बर्थडे, योर बर्थडे, खुद आपका बर्थडे। आपको ये सुन के खुशी होती है, बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी होती है। वेरी गुड। हेमा जी और शर्मा जी और समीक्षा, वेरी नाइस। ओके, नाइस। क्योंकि हमने बहुत बार ये गेम खेला हुआ, तो बहुत लोग कुछ बर्थडे के भी हाथ होते हैं ऐसे आधा, तो क्यों जन्म होते हुए आपको खुशी नहीं हुई? तो बोलते नहीं ऐसा कुछ नहीं है एक और दिन है साल का, ऐसे भी बोलते हैं लोग। तो ठीक है, वापस इसको फ्लैट लेकर आते हैं। नेक्स्ट, स्कूल अभी रीओपन होने वाला है, वो थॉट सुनकर बहुत खुशी हो रही है। Nice. कुछ पेरेंट्स ने अपने हाथ को एकदम ऊपर किया है। श्रुति के कोई दोस्त है जो रोज रात को सो नहीं पा रहे हैं ये बात सुन के, क्योंकि उनको कोविड का डर है, तो है ना ऐसे, तो उनका हाथ एकदम नीचे है। एग्जाम्पल। हाँ, नेक्स्ट, अपने बच्चों का बर्थडे पार्टी अरेंज करना आजकल बहुत इम्पोर्टेंट टास्क और प्रोजेक्ट होता है। तो वो अगर आपको सुनकर कुछ खुशी, दुख होती है या फ्लैट है या कोई फर्क नहीं, फ्लैट, हाँ, वो खुशी होती है। ओके, नाइस। ओके, नेक्स्ट इज बाल विकास क्लास। बच्चे को बाल विकास भेजना अगर भेज रहे हो तो, हाँ, ओके, वेरी गुड। अगर आप बाल विकास गुरु हो तो भी आप हाथ ऊपर नीचे कर सकते हो। आपको बाल विकास सुन के कैसे लगता है? हाँ। और फिर दूसरा है वीडियो गेम्स, ऑनलाइन गेमिंग या मोबाइल का गेम खेलना, इसको सुन के कैसे लगता है? नीचे एक मैम ने नीचे कहा एक न्यूट्रल है। कोई पेरेंट नहीं खेलते क्या वीडियो गेम्स? बहुत अच्छा होता है, ये खेलता है अच्छे से। गुड, चल, थैंक यू। तो श्रुति, आपने ये किया क्यों पहले? तो क्या होता है ना कि हमारे लाइफ में जो हमारे ऊपर नीचे सिचुएशंस होते हैं, हमारे इमोशंस भी, भावनाएं भी ऊपर नीचे होते हैं। तो हम जैसे हम खुश जब होते हैं तो बहुत खुश होते हैं, अगर दुखी हो जाते हैं तो बहुत दुखी भी हो सकते हैं। तो हम जितना वो डिफरेंस को कम करते जाएं, उतना हम और संतुष्ट लाइफ जी सकते हैं, और वो संतुलन हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए भी और अच्छा होता है। क्योंकि जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, विच इज सेल्फ एस्टीम, राइट? सेल्फ एस्टीम फंडामेंटली वही है कि आज के दुनिया में बच्चा सक्सेसफुली, हैप्पीली जी कैसे सकता है। तो ये जो एक्सरसाइज है, ये छोटा सा एक्सरसाइज, जैसे ये हाथ ऊपर नीचे करना, ये अगर आप अपने बच्चों के साथ भी खेल सकते हो, 15-20 चीजें लिखिए ऐसी, राइट? देखिए क्या क्या रिएक्शंस होते हैं हर चीज के। क्योंकि मैं आपको ओपनली बता रहा हूं, हम ये पेरेंटिंग टीच लेसन सेशंस
स्कूल्स में भी करते हैं। तो कोविड से जस्ट पहले श्रुति के खुद के स्कूल ने 10th क्लास के बच्चों के साथ ये सेशन हमारे साथ करवाया था कि आप इनसे बात कीजिए, पता करना है कि इनका क्या चल रहा है इनके दिमाग में, समझ में नहीं आता, प्रिंसिपल बोल रही थी। तो हम गए और हमने ऐसा ही सिंपल क्वेश्चन पूछा, 100 बच्चे बैठे हैं, लड़के लड़कियां मिक्स, आप में से कितने आज खुश हैं, पूछा, सिंपल क्वेश्चन। 10 बच्चों ने हाथ ऊपर किया, ठीक है। फिर मैंने सेकंड क्वेश्चन पूछा, हाउ मेनी ऑफ यू आर सैड, वापस एक अलग 10 बच्चों ने हाथ ऊपर किया। मैंने बोला बीच वाले 80 का क्या कंडीशन है? आप ये भी कॉन्फिडेंट अगर नहीं हो कि आप फंडामेंटली हैप्पी हो या सैड हो, राइट, तो बोलते हैं वो प्रॉब्लम नहीं है, उनको पता है कि वो सैड है या हैप्पी है, पर उनको वो दिखाना नहीं है कि मैं सैड हूं या हैप्पी हूं, बिकॉज उसके बाद उनको लगता है कोई मेरे को जज कर लेगा। फ्रेंड बोलेगा अच्छा तू खुश है, क्या हो गया, वरना अच्छा तू सैड है, क्या हो गया, वरना कल फेसबुक पे चला जाएगा ये सैड है, ये खुश है, या इंस्टाग्राम पे फोटो हो जाएगा मेरा दोस्त से सैड है या ऐसा कुछ। तो वो जजमेंट का जो फियर है ना, उसके कारण बच्चे अपने इमोशंस को इतनी बुरी तरह से दबाते हैं। तो ये छोटे एक्सरसाइजेस हैं जिनसे ना आप पता कर सकते हो कि बच्चों का रिएक्शन क्या होता है कुछ चीजों पे, तो इसको स्मार्टली डिजाइन करके आप खेल सकते हो। इसलिए हमने जस्ट सोचा आपके साथ भी शेयर कर रहे हो, और कोई भी एज का बच्चा खेल सकता है जैसे आपने खेला हमारे साथ, राइट। गोइंग ऑन, थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल पार्टिसिपेशन के लिए, राइट। पेरेंटिंग बहुत ही अच्छा वर्ड, सुनहरा शब्द। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, राइट, और मैं अगेन मैं ये आप चैट बॉक्स पे और आपकी बातें सुनना चाहता हूं, इसलिए ये बहुत ही ज्यादा इंटरैक्टिव सेशन होने वाला है, ये हम ज्यादा बकवास नहीं करने वाले, ठीक। और ये सच में हुआ था। श्रुति, यू वांट टू टेल दिस स्टोरी अबाउट योर क्लाइंट। सो फॉर एग्जांपल किसी ने कोई बच्चा कुछ खेल रहा था एंड देन सडनली ही आस्क्ड, ये लॉकडाउन में बहुत ज्यादा क्या होगा ना, एवरीबडी वाज स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम विद ईच अदर एट होम, पेरेंट्स जो जनरली गो टू वर्क, बच्चे जनरली स्कूल जाते हैं, लेकिन एवरीवन वाज स्पेंडिंग टाइम एट होम, तो बहुत ज्यादा बातें होती जा रही थी। सो वन किड केम टू द पेरेंट एंड आस्क्ड कि आपने मुझे यहाँ पे क्यों मुझे लेकर आए, एंड so it's a very simple question actually कि why did you bring me here, and the parent was not very sure कि वो किस context में ये पूछ रहा है, क्यों पूछ रहा है, क्या हो रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है, but he's a very smart 10-year-old kid जो बहुत सारी चीजें देखता है, very well informed। तो the very simple question अगर आप खुद अपने आप को पूछ सकते हो, या नहीं तो अगर आपके बच्चे ने आपको ये क्वेश्चन पूछा कि आप मुझे इस धरती पे क्यों लेकर आए हो, तो आपका आंसर क्या होगा? अगर आप हमको चैट बॉक्स में आंसर कर सकते हो या अनम्यूट करके भी बात कीजिए, हाँ, कि ये आंसर मुझे सुनना है आपसे भी, और इसके बहुत सारे अच्छे आंसर्स आते हैं। मैं जस्ट सुनना चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन अगर आपके बच्चे ने आपको पूछा, मैं वापस जस्ट रिपीट कर रहा हूँ, कोई जजमेंट कुछ हाँ प्लीज मैडम, क्या एक दूसरे को आप बहुत ज्यादा अच्छी तरह से पहचानते हो क्या? जो मतलब कोऑर्डिनेटर है कुछ, उनको मतलब आप उकसा सकते हो, हाँ थोड़ा सा सबको, क्योंकि मेरे को तो जिसने प्रणीता ने बोला था कि यहाँ पे बहुत बात होता है, बहुत इंटरैक्टिव होता है सेशन, अभी हमारे साथ क्यों शर्मा रहे हैं पता नहीं, या नींद में हो, सही टाइम नहीं चुना है, थोड़ा चाय गर्म करके बांट दें, आप बताइए क्या कर सकते हैं, राइट। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपका बच्चा आपको कल आके पूछता है आपने मेरे को इस धरती पे क्यों लेकर आए, और व्हाई डिड यू ब्रिंग मी ऑन दिस अर्थ मम्मी डैडी, आपका आंसर क्या है? ऐसा कोई सही जवाब गलत जवाब नहीं है, बट प्लीज आई वांट टू हियर दीज आंसर्स फ्रॉम यू। यस समीक्षा जी प्लीज बोलिए, हाथ ऊपर करने की जरूरत नहीं, सीधे बोल सकते। Yeah. The first, Sairam. First of all, we are no one to get him here. The Swami's grace, which has brought the child on earth, and I would always want him to be a good human and serve everyone. सबको एक अच्छे इंसान के नाते सबके साथ बिहेव करना है, पेरेंट्स के साथ या अपने एल्डर्स के साथ अपना क्या बोलते हैं उसको, कल्चर स्प्रेड करना है, सर्व द नेशन और द सराउंड पीपल।
around. ठीक है, तो आपको लगा कि आपको ऐसा आपको एक संतान, सी स्वामी का बात सही है, इवन आई हैव हम सब अभी एक एक सांस भी ले रहे हैं, वो स्वामी का ग्रेस है। पर ये जो ह्यूमन, भगवान जैसे बोलते हैं कि ह्यूमंस को ये केपेबिलिटी है डिसीजन मेकिंग का। तो जब आपने ये स्टेप लिया कि पेरेंट बनना, ये चॉइस लिया, डिसीजन बनेगा, सो ये आपका आंसर है कि यू आपके योर चाइल्ड शुड बी एबल टू सर्व, बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। वेरी नाइस, वेरी नोबल। Akshada, to help others grow along with the child himself, to make God our best friend and then go again to God with happiness. Very nice. Anyone else? Come on, दो ही लोगों का आंसर है, बाकी सबको पता नहीं। Because I'm saying, आंसर्स में ऐसी कोई सही जगह नहीं। मैंने कुछ लोगों से मैंने लाइव सेशंस भी किए हैं पेरेंटिंग के, तो पीपल ये भी बोलते हैं कि मुझे एक फ्यूचर एटीएम चाहिए था। कोई गलत चीज नहीं है, वो उसका आंसर है। एक और अंक सर ने बोला था कि एक पेरेंट सेट ने बोला था कि अगर बच्चे ना करे तो और शादी में क्या करें, दैट वाज द आंसर। मींस इट इज ऑटोमेटिक, इट्स ऑटोमेटिक, उन्होंने बोला। so answers, okay, we are all born and alive because God has certain tasks that we have to fulfill. We need to be good human. ठीक है, very good. So the thing is कि जो हम में और what is that called? And what is the difference between what makes man the most evolved is the decision making capability or the choices that we make, right? So what we are trying to understand is with what vision or with what intention did you make this choice? Because this was a conscious choice. We are very well aware that you have all decided consciously to have children, right? So we are trying to understand that what is, if you haven't thought of it till now, it's fine, but it's important to think that what is your intention for this child? Like some of you have said, to help the child grow with others, help others, go back to God. So वैसे it's important for you to have that vision, and it can be your very specific vision, but important to keep that in mind now, because as we go through the session we will try and align. Because we have to stick to this vision. That's extremely important, right? The vision is very beautiful, but then we have to create or structure the child's path. Execution has to be towards this vision all the time. So we keep these visions with us. My request is, all of you who are not participating, it's a very shy team, admin. We would like to see or hear you or see you also. So actually, please don't feel shy. Pranita, whoever is there. Pranita is there, or I don't know. Anyway, so my suggestion is this again, please, request all of you to participate even more. And even if you're right now not participating, ये सवाल का आंसर 100% रखना है। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है ऑफ पेरेंटिंग, राइट? बिफोर वी गो इनटू अ चाइल्ड का सेल्फ एस्टीम एंड ऑल दैट, प्लीज ये आंसर आप जरूर रखिए अपने साथ, कि बच्चे का व्हाई आर यू हैविंग अ चाइल्ड ऑन अर्थ, इररिस्पेक्टिव बच्चे ने आपको ये सवाल पूछा है या नहीं, आपके पास ये आंसर होने की जरूरत है। मूविंग ऑन, राइट? सो एक बार आपको पता चल गया व्हाई यू आर अ पेरेंट, दैट्स द क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट। सो व्हाट इज पेरेंटिंग? बेसिकली वेरी सिंपल, इट इज द पैटर्न ऑफ बिहेवियर्स दैट अ पेरेंट यूजेस टू रेज हिज और हर चिल्ड्रन। ये हम ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं जा रहे हैं। So let's go to the main point, is how to parent, right? So you want to take these one. So there's something very interesting, I've noticed, and I've also read a lot from whatever I've read, that whenever we get into any relationship, whether it is of a spouse, husband and wife, or parenthood or friendship, we expect everything to change automatically. हमको लगता है कि हम ऑटोमेटिकली अच्छे हस्बैंड या वाइफ हो जाएंगे, वो 7 फेरे हो गए, मतलब बहुत सारे, स्पेशली प्रीवियस जनरेशन का, आई नो मैं किसी को कुछ बता नहीं रहा हूँ, बट ये जैसे हम काउंसलिंग कोचिंग केसेस करते हैं, तो उसमें ये लगता है कि अपने प्रीवियस जनरेशन में ये पॉइंट होती थी कि 7 फेरे ले लिए उस आग अग्नि के, यानी वो ऑटोमेटिकली हस्बैंड या वाइफ हो गए, एंड फिर ऑटोमेटिकली तुम सीख जाओगे और वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। So yes, things happen like that, but however, every decision, again, every step we take, every relationship we adorn is a very conscious process, and that is when it becomes a healthier process.
क्योंकि what happens is कि मुझे लगता है अगर as a wife I think automatically he's my husband, he's supposed to do these things. My expectations rise out of myself and out of him that I'm supposed to do these things, he's supposed to do these things. So that's where the whole mechanism goes for a toss. Whereas it has to be a conscious process that I want this relationship to be like this. I want my child to be like this. Hence, you are all saying that you want your child to be good people, and that's very beautiful. But then what is the meaning of good? How do you define the borders of being good in a day like this, in an environment or life like this, the world like this, where you need to be smart, not just good? Is good enough is the question, right? So I'm just trying to put it out there that it's a conscious process of understanding what you want and how you're going to achieve that as a parent. You're not naturally parents. हाँ. देन दूसरा एक पॉइंट है जो हम सारे पेरेंट्स को बोलते हैं, जैसे पेरेंट होने के बाद लोग बहुत बोलते हैं कि वी आर नॉट एबल टू गिव टाइम टू आवर चिल्ड्रन. व्हाई? बिकॉज जॉब में बहुत बिजी है, वरना कुछ और हो रहा है, या कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में बिजी हो गए और बच्चे के ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे. तो उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमेशा याद रखना कि आप एक पेरेंट हो, ये नंबर 1 स्टेटस है, राइट? उसके बाद उस मींस एक बार आप वो पेरेंट हो गए ना, नंबर 1 स्टेटस, तो सारे डिसीजन उधर से आते हैं कि क्या ये डिसीजन मैं ले रहा हूं या ले रही हूं, क्या ये मेरे बच्चे के लिए अच्छा है या नहीं है. जब तक आप पेरेंट नहीं थे तब तक आप एक हस्बैंड और वाइफ, ये आपका फर्स्ट नंबर 1 स्टेटस रहता है. उसके पहले बिफोर यू गॉट मैरिड आप एक माँ और यू आर अ चाइल्ड टू योर पेरेंट्स, तो आपका चाइल्ड जैसा that was student or child, that was your number 1 status. एक बार आपने शादी कर ली, and this is basically based on the shastras I'm saying this is not me creating this is based on what the dharma says, that once you become a husband or a wife, then your wife or your husband becomes your number 1 priority. Your being a child of your parents comes below that. Otherwise, if you are not able to do that, then you're not supposed to marry. You rather continue staying a son or a daughter if that is going to be your first choice. Again, this is perspective. It helps with decision making. And once you become a parent, then that becomes, your child becomes your number 1 priority. Then you are a husband or a wife. Then you are a brother, sister, child, employee, whatever it is. Once you have this status structure of being a parent, number 1, you will always take good decisions for your child. Very, very important. सेकेंड थिंग है डिसीजन का वेटेज, राइट? एक पेरेंट बनना, राइट, थ्रू भगवान्स ग्रेस, एब्सोल्युटली, पर ये 18 to 30 प्लस 30 to 50 ईयर डिसीजन है बेस्ड ऑन आपके अटैचमेंट एंड डिटैचमेंट पे. पर ये मिनिमम एक 18 ईयर डिसीजन है जिसका नेचुरल फ्लो नहीं हो सकता कि एक बार बच्चा पैदा कर लिया तो वो ग्रो हो जाएगा. उसके लिए भी प्रोग्रेस एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर. और मैं ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इवन जब हम भगवान के हॉस्टल में थे स्वामी के साथ रेगुलरली बात करते हुए ये सब वो सब, फिर भी स्वामी ने टीचर्स को बोला था कि वीकली मीटिंग्स करो, हर बच्चे के बारे में डिस्कस करो, कौन से बच्चे का बिहेवियर सही हो रहा है, नहीं हो रहा है, एग्जाम सही हो रहे हैं, या कोई ज्यादा टाइम स्पोर्ट्स में बिता रहा है. हर बच्चे का सोचो 500 बच्चे हॉस्टल में, एंड स्टिल स्वामी यूज्ड टू स्पेंड टाइम, and not just about studies and then curricular, about curricular everything. extracurricular. And then while deciding whether the student should progress to the next year, the entire set of students list would come to Swami. That's like 1,500 plus students, and Swami would look through it and decide, this kid need not remain. Behavioral problems. Imagine, progress reports have to be evaluated. You both as a parent have to sit down once in a week or once in a month and say, okay, this child, how is this project going on? इसको मैं project नाम दे रहा हूँ आपके लिए, because जब हम corporate world में होते हैं या schools में भी होते हैं ना, project बहुत easy word होता है, सबको project बहुत अच्छा लगता है word. Also, I think I've heard this from a lot of parents also, and we understand it like that. But I've heard from parents that they say that, I've realized that this is actually a project, and so you have to look at it as a project. And the last thing is, बहुत simple है. A child is a mix of 2 genetics. One is the mother, one is the father, and their genetic lines, and then a mix of
situations and friends, and so in psychology we call it as nature versus nurture. So it's like 50% of your what you have within your nature, constitution, your genetics, and then what is given in the environment, surroundings. So what's the ideal dream child? बोलते हैं पापा की परी, आजकल उनका फेवरेट वर्ड है पापा की परी या माँ का लाडला बेटा, बहुत चलते रहता है, मुंह गाने भी बनते हैं, स्टोरीज भी चलते हैं, मीम्स भी चलते हैं इसके ऊपर. तो ये आइडियल ड्रीम चाइल्ड क्या है, राइट? नाउ जैसे मैं अगेन Let's go to ask if anybody wants to discuss. No, it's fine. Okay, you want to पहले anybody wants to discuss these points? So पहले किसी को ये पॉइंट पे डिस्कशन करना है? Anybody wants to ask, discuss anything? हेमा जी, सही, बहुत ही सही आंसर आपने भी दिया है, थैंक यू. किसी को ये पॉइंट्स पे कोई डिस्कशन है कि बच्चे आपके जेनेटिक मिक्स हैं? देखिए, हमको कोई दिख नहीं रहे हैं वीडियो. I'm telling very openly, we are not able to see anybody, we cannot hear anyone talk, so we just want to know कि आपको ये सही, is this vibing, आपको resonate हो रहा है? Because we don't want to just keep going like this. Please talk to us, it will help us. And क्योंकि नॉर्मली जैसे हम ये सेशंस करते हैं, ये हमारा आई थिंक 18वां या 20वां सेशन होगा, तो नॉर्मली एटलीस्ट अब तक 10 पेरेंट्स कुछ बात कर चुके हैं, एटलीस्ट हम देख सकते हैं वीडियोस. तो पता नहीं ये गोवा स्पेशल है कि किसी कोई सब अपने चेहरे छुपाते हैं, पता नहीं, मैं पहली बार देख रहा हूँ. ऐसा कोई रूल दिया है आपको कि प्रणीता, where are you? Yeah, Sairam brother, Sairam doctor. मैं सभी पार्टिसिपेंट्स को रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि डॉक्टर श्रुति और ब्रदर अक्षय इतना इंटरैक्टिव सेशन करना चाह रहे हैं आपके साथ, तो प्लीज वीडियोस ऑन करके अगर किसी को डाउट्स, if you're comfortable, but just like ask us if you need to. If you're having any doubts, you will please ask. The doubts भी नहीं, कुछ भी आपको कुछ भी बोलना है. एक बेसिकली हमको लगता है हम दीवार से बात नहीं कर रहे, उतना ही लगना नहीं चाहिए, बस कि आवाज सुनाई दे तो रही है, बस मेरा पॉइंट वही है. थैंक यू. ठीक है. और कोई भी पॉइंट पे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चीजें हमने खुद से डिजाइन नहीं किया है. ये हमने खुद से सीखा है, प्लस बहुत सारी चीजें हैं. कनेक्टिविटी लोअर्स, सो वी प्रेफर टू कीप वीडियो शट. नो प्रॉब्लम, यू कैन टॉक इफ यू. जिसके पास कनेक्टिविटी कम है तो वो बंद कर सकते हैं, पर एनीवे आपका चॉइस है. आई थिंक अगर आपके पास 25 MB प्लस की कनेक्टिविटी है तो आप 50 वीडियोस ऑन करके भी चला सकते हैं. नो स्ट्रेस. थैंक यू. आगे बढ़ते हैं एंड देन होपफुली. ठीक है, थैंक यू अक्षदा. ठीक है. सो ये एक हम क्या करते हैं ना, हम हर जगह से थोड़ा थोड़ा ढूंढ के निकालते हैं. बहुत सारा इंफॉर्मेशन गूगल से भी मिलता है. तो मैकिन्सी इज क्या बोलते हैं उसको, एक ग्लोबल कंसल्टेंट है और नॉलेज एक्सपर्ट बेसिकली. तो वो जब रिपोर्ट्स बनाता है तो उसका हर रिपोर्ट इज नियरली 500,000 to $1 million के रिपोर्ट्स होते हैं, करोड़ों रुपए के रिपोर्ट्स होते हैं. तो उन्होंने एक रिसेंट रिपोर्ट बनाया किसी एक कंपनी के लिए कि बच्चों के लिए अगर आपको टारगेट करना है कोई प्रोडक्ट, जैसे कोई चॉकलेट या कोई टॉयज, तो एक कंपनी ने उनको पूछा कि आप जाकर मार्केट में जाकर ऑल अक्रॉस द ग्लोब आजकल के जनरेशन को, आज के जनरेशन को बाय द वे जेन अल्फा बोलते हैं, जनरेशन जी या जनरेशन अल्फा. जनरेशन अल्फा वो जनरेशन है जो मेजरली 2005-2010 में पैदा हुआ था. तो आज के दुनिया में अराउंड बिटवीन द एज ऑफ 8, 10, 15 वो है, विच आई थिंक मेजॉरिटी पेरेंट्स के बच्चे होंगे. तो आपके बच्चे को जनरेशन अल्फा हम बुलाते हैं. तो जनरेशन अल्फा के क्या कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट्स, बिहेवियर्स क्या है, एंड मैं श्योर हूं आपको भी इसमें श्योरली कुछ तो दिख रही होगा. दे आर टेक्नो सैवी, ये तो बात करने की जरूरत ही नहीं है. बहुत इंफॉर्मेशन सेंट्रिक है, फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन या डेटा पॉइंट्स उनको बहुत अच्छा लगता है और इजीली अवेलेबल सीख भी जाते हैं. फेवरेट क्वेश्चन इज व्हाई, क्यों, हर चीज के लिए क्यों, राइट. बहुत इंडिपेंडेंट है, बोलते हैं मैं कर लूंगा, आप चिल करो. खुद का जूम चलाते हैं, खुद का आईपैड, फोन, सब कुछ खुद चलाते हैं. आप मम्मी का हाथ नहीं पकड़ते, फोन भी खुद से घुमाते हैं. बहुत ओपन माइंडेड है और ये बहुत ही पॉजिटिव चीज है कि हमारे टाइम में लड़का लड़की या लड़का और लड़के का एक साथ होना, ये रिलेशनशिप्स को हम बहुत ही अलग नजरिए से देखते थे. पर आज के बच्चे दे हैव लर्न टू सी इट इन अ मच मोर ओपन स्टाइल.
कम इंसल्टिंग हो गया है दैट वे, एंड वेरी लॉजिकल, वेरी रियलिस्टिक। ऐसे मीन्स वो मीन्स जब छोटे होते तब वो परी वाली फ्रोजन वोजन वाली कहानी बहुत चलती है, पर कुछ देर के बाद वो भी रियलिस्टिक होके सच्ची मीन्स बहुत ही लॉजिकल बात करते हैं, एटलीस्ट बेटर देन जब मैं कैसे था अपने टाइम में। पर एट द सेम टाइम उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स निकाले। मैंने उसको रेड में डाला, ऐसा नहीं है कि वो बहुत बुरे हैं, बट वो इंटरेस्टिंग है, जो जिसके ऊपर काम करने की जरूरत है। और उसमें बहुत इंपॉर्टेंटली एक येलो में डाला है लो सेल्फ एस्टीम, राइट? क्यों? क्योंकि लेट्स गो थ्रू द अदर पॉइंट्स। एक है एंटाइटलमेंट। एंटाइटलमेंट का मतलब है कि उनको लगता है कि क्योंकि मैं इस दुनिया में आया हूं, अपने मर्जी से नहीं आया हूं, मेरे पेरेंट्स लेकर आए हैं मुझको, मैं उनसे जो चाहिए मांग सकता हूं, मेरा मेरा हक है इस पैसों पे, मेरा हक है। हाँ, बेसिकली कुछ भी देख के मांग सकते हो, ऐसा नहीं मींस हमारे टाइम में वो कुछ मांगने से पहले हम 10 चीजें सोचते थे कि यार ये एक्चुअली मेरे पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो वो नहीं है, राइट? नॉन कमिटल कोई भी चीज के लिए ना, वो मैं देखता हूँ, आई चेक इट आउट, आई ओके, मैं देखते हैं, वो 100% हाँ या ना वाला जवाब देना इज बिकम वेरी डिफिकल्ट। इसमें आप वो देखोगे टीनेजर्स में, इसलिए रिलेशनशिप भी ब्रेकअप्स तो हर 15 दिन होते हैं, तो इट्स वेरी स्पेसिफिक नॉन कमिटल स्ट्रक्चर। लो एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब है यू कैन पुट योरसेल्फ इन द अदर पर्सन शू, आप दूसरों की फीलिंग्स समझ सकते हो, राइट? कभी कभी आज जैसे मैं वही बता रहा हूँ, किसी के मेहमान आए थे घर पे कुछ दिन पहले, और उसमें से एक बच्ची सडनली खड़ी होगी, बोलती है ये क्या बकवास बात चल रही है आप दोनों के बीच में, हम क्यों आए हैं, मेरे को तो घर जाके टीवी देखना है। मैं वही सोच रहा था कि अगर मैंने ये बात 20 साल पहले की होती तो मैं अभी कहीं पे, मेरे को पिताजी गार्ड नहीं देते कहीं पे जमीन के अंदर। बट एनीवे, जस्ट जोकिंग, बट ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक है। फिर जजमेंटल, एक दूसरे के ऊपर जजमेंट करना, वो आता है बेसिकली फेसबुक के लाइक से और इंस्टाग्राम के लाइकिंग से। लाइक और डिसलाइक बटन जिस दिन हमने दे दिया लोगों को, उधर से जजमेंट ऑटोमेटिकली शुरू हो गई। ये बच्चों में नहीं है, हर बंदे में आजकल की कैरेक्टरिस्टिक है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। बहुत बता रहा हूँ, मैं कोई संत नहीं हूँ, व्हाइट शर्ट पहना इसलिए मेरे को कोई मतलब नहीं होता कि ये सब में गलतियां है, मुझ में हजारों हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ बिंदास कम्युनिकेट कीजिए। कम्युनाहॉलिक। कम्युनाहॉलिक का मतलब है कंटिन्यूअसली वांट टू give their comments, views, opinions. Then unlimited consumption. हाँ, मतलब there is no end to. हाँ, it's next चीज और whether वो टेक्नोलॉजी हो या खाना हो या इक्विपमेंट हो या क्लोथ्स हो, they generally want to have a lot. और इसमें पेरेंट्स का भी हाथ बहुत इंटरेस्टिंगली है, बोलते हैं मैकिन्सी आ जाते हैं उस पे। और मैनिपुलेटिव, ये मैनिपुलेटिव में मैं चलो एक और इंटरैक्टिव करते हैं। मैंने आपको बहुत पकाया है और मैं कंटिन्यू करूंगा आपको पकाने का, राइट? अनफॉर्चुनेटली, राइट? एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये, मैं आगे आपसे, मैं नॉर्मली पेरेंट्स से पूछता हूँ और आपसे भी पूछ रहा हूँ, आप में से कितनों को लगता है कि आपके बच्चे आपसे ज्यादा स्मार्ट हैं? आपको बहुत खुशी है इसके ऊपर कि आपके बच्चे, आप आज जैसे हो, आपका 10 साल या 12 साल का बच्चा आपसे ज्यादा स्मार्ट है? ये गर्व की बात है। श्योर? 100%, वेरी नाइस। और सबको गर्व लग रहा है इसके ऊपर, राइट? Now you confuse them. मैं जस्ट पूछ रहा हूँ, बोल रहे थे बच्चे से समटाइम्स। अच्छा, किसने समटाइम्स बोल दिया? ये गर्व की बात है, ये मेरे लिए अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम की बात है। कोई बता सकता है क्यों? Sometime ये तो typical non-committable, non-committal. I am proud that my son is brighter than me. So let me put my point here, and this is again something which Swami has said. So मैं खुद की बात कभी बोलता नहीं हूँ. This is what even Swami has always told the teachers also. It's very interesting that आप आज are in the age of 25 and 25, 30, 35 के एज के हो या 40 के एज के हो, आपने दुनिया देखी है, राइट? आप जब ये इंटेलिजेंट, स्मार्ट बोल रहे हो, राइट? दिस स्मार्टनेस इज फैक्ट बेस्ड। आपसे फैक्ट बेस्ड, इट इज मोर। फर्स्ट थिंग इज, आप जो स्मार्टर का डेफिनेशन जो आप बोल रहे हो, ये फैक्ट बेस्ड है कि they have more knowledge than us. उनके पास आपसे ज्यादा नॉलेज है, उसमें डाउट नहीं है। कि जैसे लोग वर्ल्ड के कैपिटल्स बता दिए, टेक्नोलॉजी, आपको कोई भी फोन ले लिया अनलॉक करके दे देंगे, राइट? कोई भी चीज, टेक्नोलॉजी, जूम चलाते हैं, ये चलाते हैं।
पर जब आप उनको लाइफ डिसीजन, जो आप 30 साल 35 साल आप बच्चे थे, फिर आप कॉलेज में गए, आपने वो एक्सपीरियंस पाया, फिर आपकी शादी हुई है, आपने वो एक्सपीरियंस लिया है, आप अपने फैमिलीज के साथ जिए हो, ये जो पूरा एक्सपीरियंस साइकिल है, राइट, ये सारा एक्सपीरियंस साइकिल आप बोल रहे हो कोई यूज का नहीं है या लेसर या कोई इंपॉर्टेंस का नहीं है, और आपके बच्चों ने जो टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा गिमिक्स खेल रहे हैं, या स्कूल में 15 टेबल्स या 25 टेबल आंसर फटाफट दे रहे हैं, उससे वो आपसे स्मार्ट कैसे हो जाते हैं? क्योंकि ये इस फंडामेंटल सेल्फ एस्टीम का बेस है ये क्वेश्चन। और इसको समझने के लिए यस, आप आई एम ऑल्सो प्राउड कि आज के बच्चे आर 10 टाइम्स स्मार्टर देन मी फ्रॉम अ नॉलेज एंड फैक्ट पर्सपेक्टिव, राइट, डेटा। आज मुझे एक 5 साल की लड़की ने, मैंने आज 5 साल की लड़की के साथ इंटरव्यू किया है, उसने मुझे मेरे साथ आधे घंटे का इंटरव्यू किया ऑन अफ्रीकन एलिफेंट्स। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अफ्रीकन एलिफेंट एंड क्या बोलते हैं इंडियन एलिफेंट? आर स्पाइडर्स इंसेक्ट्स और आर दे एराक्निड्स? ब्यूटीफुल, राइट। पर मैं वही बता रहा हूं, वही सेम बच्ची, कल हम सब एक पार्टी में मिले थे, राइट, सॉरी किसी का आई थिंक एको हो रहा है, सॉरी, कल वो बच्चे हम पार्टी में मिले थे, सॉरी अभी सॉरी सुनाई दे रहा है ठीक से? सॉरी, कोई मेरे को अगर ये दे सकता है कि सब सुनाई दे रहा है ठीक से? यस यस यस, सॉरी, थैंक यू। तो वो सेम बच्ची ना कल हमको एक पार्टी में मिली थी, 45 मिनट्स उस पार्टी में जस्ट इनके फ्रेंड्स की गैदरिंग थी, 45 मिनट्स वो बच्ची ना सेम जिसने मेरे साथ आधा घंटा फेस टाइम पे खुद के आईपैड से चैट करके अफ्रीकन एलिफेंट्स और इंडियन एलिफेंट्स का ये बताया, 45 मिनट्स, क्योंकि 10 लोग थे वहां पे, वो अपने हाथों को ऐसे करके 45 मिनट्स बैठी रही, और उसके पेरेंट्स बोलते हैं मिल लो, बात कर लो, दूसरे बच्चे हैं, कर लो। यस, शी इज मोर इंटेलिजेंट देन मी, but when I was at 5 years old, she is more intelligent than me. She is not as more intelligent than me as today. Today I am 35. And I'm saying, if you are saying that you are prouder that your son is smarter than you, then I request, this is my sincere request for all of you, that please put efforts to become smarter than them every single day. You have to know what they are knowing and better than that. इट्स नॉट डिफिकल्ट, मतलब गूगल है आपका दोस्त। मिस, मैं सिंपल सा पॉइंट पूछता हूँ, मैं पूछता हूँ PUBG आज तक कितने लोगों ने खेला है? बच्चे सारे खेलते हैं, आज तक खेला है किसी ने? नहीं। अरे क्या है वो गेम, छोटा सा पकाओ चीज, ये वो, या शालमा, इट्स सोशल बिहेवियर, इट्स ऑल ऑफ इट, वी आर कमिंग टू दैट, राइट। मेरा पॉइंट बहुत सिंपल है, राइट। आपने कभी डाउनलोड करके खेला है? नहीं। क्यों? पाप है। 15 मिनट लगते हैं गेम को सीखने में, एक बार 15 मिनट देख, मैंने भी डाउनलोड किया, खेला 15 मिनट, फेंक दिया, समझ में आ गया, नेक्स्ट दिन बच्चों से बात कर सकते हैं, ये है, ये गन है, ये है, वो तेरे को और 20 गन के नाम बता देगा, पर उससे वो मेरे से स्मार्टर नहीं हुआ। आपने गेम का स्ट्रक्चर समझ लिया, उसमें वो 4 घंटे बिता सकता है, वो अगर आपके लिए स्मार्टनेस है तो मेरे लिए प्रॉब्लम है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हर चीज में। स्वामी का सिंपल रूल था, एंड मैं आपको ये बहुत छोटी सी स्टोरी भी बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, ठीक है, गॉडफादर नाम की एक बुक थी, है अभी भी, इट्स ऑल टाइम क्लासिक, मूवी भी बनी है, बहुत ब्यूटीफुल बुक है, राइट, मैंने भी पढ़ी है। परती में हॉस्टल के अंदर एक लड़का जो स्वामी से बहुत नजदीक था, स्वामी के साथ, ठीक है, उसने ये बुक पढ़ ली। बुक में बेसिकली वायलेंस है, माफिया का स्टोरी है, इटालियन माफिया है, बहुत सारी चीजें है, वेरी वेल रिटन बुक, क्लासिक है, इंग्लिश क्लासिक है, जिसने नहीं पढ़ी है प्लीज पढ़ ले, राइट। उसने पढ़ ली बुक, नेक्स्ट डे स्वामी के साथ स्वामी के साथ था, सत्य साई बाबा के साथ इंटरव्यू रूम में था। सडनली सत्य साई बाबा उसको देख के हंस के बोलते हैं, ए माफिया कैसा है? ठीक है, लड़के की फट गई, एज यू कैन इमेजिन। उसने जाकर भगवान को बोला तो नहीं था, स्वामी मैं आज चैप्टर 2 पे हूँ, चैप्टर 5 पे हूँ, वो रूम में पढ़ रहा है अंदर, राइट। उसको स्वामी को, बट भगवान को सब पता है। एंड वो, मैं आपको यहाँ पे ना ये देखिए, उनको भगवान की तरह मत देखिए, भगवान स्वामी को आप उनको पेरेंट की तरह देखिए। और आज ये सारे एक्सपीरियंस जो मैं बता रहा हूँ, दे आर ऑफ स्वामी एज अ पेरेंट, राइट। तो स्वामी उसको बोलते हैं, ओ माफिया कैसा है, राइट। तो इमीडिएटली बोला, स्वामी वेरी सॉरी, मैंने ये बुक नहीं पढ़नी चाहिए थी, नहीं ये ना। स्वामी ने बोला, देखो मेरे को बुक में प्रॉब्लम नहीं है,
पढ़ ली ठीक है, पर उसको भूल जाओ। वो गन ना अपने सिर में कैरी करके मत रखो। तो स्मार्टनेस क्या है? अगर कोई पेरेंट होता आज के दिन में, वो बच्चे को पीट देता, कैसे पढ़ ली तूने बुक, इसमें वायलेंट ठाप 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 मार दे, तो वो क्या करेगा? अगली बार 3 और बुक लेगा। गॉडफादर के 4 पार्ट है उस बुक के, वो चारों पार्ट पढ़ेगा पर छुप के, राइट? और उसमें क्या हम पेरेंट बोलेंगे बच्चा बहुत स्मार्ट है, हमारे देखे बिना पढ़ लिया उसने, राइट? पर पॉइंट वो क्या है, स्वामी का क्या पॉइंट है? ऐसा नहीं है कि वो बुक जानते नहीं, उनको बुक का सब कुछ पता है। उसने बच्चे को डांटा नहीं, उसने बुक का एक सार निकाल के सिंपल बोल दिया, पढ़ लिया ठीक है, पर वो दिमाग में ना हर बंदे को देके आज इसको इस गन से गोली मारूंगा, उसको उस गन से गोली मारूंगा, वो छोड़ दो पर्सपेक्टिवली। सो दैट इज कॉल्ड बीइंग स्मार्टर देन योर चाइल्ड। बच्चों के पास इंटेलिजेंस होती है, बच्चों के पास डिस्क्रिमिनेशन नाम की चीज है कि ये सही है ये गलत है मेरे लिए। जब तक ये फंडामेंटल बिहेवियर पॉइंट नहीं है तो हम कैसे बोल सकते हैं कि बच्चा हमसे स्मार्ट है? स्मार्टनेस का, इंटेलिजेंस का डेफिनेशन सही कीजिए पहले। और मैं आपको अटैक नहीं कर रहा, मैं ये इस ग्लोब का प्रॉब्लम है आज के दिन में, मैं बता रहा हूं। हम इतना इंपॉर्टेंस फैक्ट्स और नॉलेज को देते हैं। मैं सीरियसली चाहता हूं, और मैं आपके लिए एक होमवर्क जैसे दे रहा हूं, नेटफ्लिक्स पे एक कोटा फैक्ट्री करके सीरीज है, कोटा फैक्ट्री, ठीक है? पूरे आईआईटी प्रिपरेशन पे है ये गेम, ठीक है? देख लीजिए कभी टाइम मिले तो, कोटा फैक्ट्री जस्ट देख लीजिए। ये रियल लाइफ आधारित है, एक्चुअल occurrences today which is happening in Kota is like this world famous IIT prep center बन गया है, right? Very important to see what is happening today in the world. ऐसी चीजें देखिए, you will come to know what's happening, क्योंकि most parents को पता नहीं IIT का गेम ही क्या है, पर बच्चों को भेज देना है। Very important to see ना। मैं यही तो पॉइंट बोल रहा हूं कि बच्चों से 2 स्टेप आगे हर चीज में रहिए। नया गेम चाहता है, आप डाउनलोड करके एक दिन खेलिए ना। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप भी उसके साथ एक्सपर्ट बनते जाइए 20 घंटे के लिए। 1 घंटा देखा, खेलिए, ताकि आपको पता है कि क्या हो रहा है उधर। ऐसा एक चीज नहीं होना चाहिए। एंड ये न्यूयॉर्क टाइम्स इंडिया का नहीं, कोई सांस्कृतिक, इट्स नॉट सम स्पिरिचुअल सनातन सारथी इज नॉट टेलिंग दिस। न्यूयॉर्क टाइम्स विच इज द वर्ल्ड्स मोस्ट एडवांस्ड कंट्री, यूएस का हेडलाइन न्यूज़पेपर इज सेइंग दैट एवरी पेरेंट till the age of 16 should know every single person, every single contact, every single image, every single application in their children's phone, because it is dangerous. Because till the age of 16 a child cannot develop discrimination. Discrimination मतलब है ये सही है ये गलत है, इससे बात करना है इससे नहीं करना है, ये चीज खानी है ये चीज नहीं खानी है। ये 16 तक साइंटिफिकली बच्चों में डेवलप नहीं होती, अनलेस आपका बेटा रामकृष्ण परमहंस है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, राइट? स्मार्टनेस, एक और ब्यूटीफुल स्टोरी। साउथ अफ्रीका में थे हम 4 साल, स्वामी की ग्रेस से हमको भेजा गया था। मींस मेरे को जॉब मिली थी वहां पे, तो हम लोग वहां पे काम कर रहे थे। और मैं भी एक, मींस मेरे को ये बहुत अच्छा लगता है कि चीजों में घुसो, कोई भी चीज में, गेट इन, लर्न, गेट आउट। पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बट नो एवरीथिंग। मैंने एट द एज ऑफ, मेरे को एक दोस्त से मैंने 1 मंथ के लिए प्ले स्टेशन मंगवाई थी। मेरे को जस्ट देखना था क्या है ये चीज, 1 महीने के लिए जस्ट बोरो किया था प्ले स्टेशन, प्लीज। मींस सारे बच्चों को चाहिए होता है। लेट मी जस्ट सी, इतना क्या एक्साइटिंग है। तो डाउनलोड मैंने मंगवाया। मेरे को एक सीडी लेने गया था मैं प्ले स्टेशन की, तो जगह है तो प्ले स्टेशन का द गेम वाज they were looking at different games, and on games they were very specifically written +18 +14 games के ऊपर age limits लिखी रहती हैं, safe to play. And an 18+ game, and I'm saying this, I hope your kids are not here. If anyone's child is listening to this right now, that is on your problem. I've said this 5 times right now. Please see your children are not here on this call, right? There is a game called, I think it's called Witcher or something, very very intense game. The game basically allows the players to participate in sexual acts on the game virtually. You can do all kinds of stuff with females, males, all kinds of stuff is allowed on the game. It is a part of the game. That's why the game is an 18+ game, right? So एक बच्चा 11 साल का, he picks up this game and says, goes to the cashier and says, please give me this game.
नॉर्मली कोई भी दुनिया में मैं देखूं तो वो कैशियर को पैसे चाहिए, वो उसको पैसे देके दे दे। पता नहीं उस बंदे के दिमाग में कैसे रखी, बोला तेरा एज क्या है, तो बोलते 11, बोलते ये गेम 18+ है, निकल लो, आई एम नॉट सेलिंग दिस टू यू। ठीक है, बच्चा बोला ओके नो प्रॉब्लम। 5 मिनट के बाद उसकी माँ आई गुस्से में, ठीक है, यू रेफ्यूज टू सेल दिस टू माई चाइल्ड। तो उसने बोला यस मैम, ही इज अ माइनर, ही कांट प्ले दिस गेम। am I a major? Am I an adult? Yes ma'am, I am buying this. She took the CD from the child's hand, placed bang करके bang किया, पैसे फेंक दिए, दे दिए, ले लिया, and now see करके बोला, और बच्चे के हाथ में CD देखी, चल गई मदर। स्मार्ट, वेरी स्मार्ट। ये आपका डेफिनेशन है स्मार्टनेस का, राइट? वेरी इंटरेस्टिंग, थिंक अबाउट इट प्लीज। A parent till the age of 16 at least has to be 2 steps ahead in every single aspect. आप मेरे साथ डिसएग्री कीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हम क्या बोलते हैं, ये दिस वाज नॉट गोइंग टू बी अ क्या बोलते हैं लोकसभा सेशन वेयर ऑल ऑफ अस एग्री एंड वोट। इट्स अ पॉइंट ऑफ व्यू, आई एम थ्रोइंग इट आउट देयर। Till 16 a parent has to be 2 steps ahead. Make your child smart, make him super intelligent, no problem। उसको आप सुंदर पिच्चाई बना दीजिए, पर आप सुंदर पिच्चाई की माँ हो तो उतना स्मार्ट भी रहिए। बस मेरा वही पॉइंट है। मैं ये नहीं बता रहा, बच्चों को एक्सपीरियंस देते रहिए, और चीजें और फैक्ट्स और बुक्स पढ़ते जाने, पर हर बुक आपको भी पढ़ना चाहिए, राइट? वो इंपॉर्टेंट। हर गेम आप खेलिए। इसीलिए मैं बोलता हूं ये 18 से 30 साल का प्रोजेक्ट है बच्चों के साथ पेरेंटिंग। ऑटोमेटिक प्रोसेस नहीं है। जब श्रुति ने बोला इट इज नॉट एन ऑटोमेटिक प्रोसेस, इट रिक्वायर्स दिस daily updating, fact setting. Most of the time it becomes difficult to cope up with the new technology. How is your child coping up, Shalma? I'm just asking a simple question. You can unmute and talk, it's fine. I just want to ask a simple question. How can your child cope up and you can't? कोप मतलब आपको बेसिकली समझना है, राइट? तो वो तो आप अगर इंटरेस्ट और थोड़ा टाइम उसमें डालोगे ना, यू विल नॉट। क्या होता है कि बच्चों में वो इंटरेस्ट रहता है, दे वांट टू कीप अप विद द पीयर, विद द फ्रेंड्स, विद व्हाट देयर इंटरेस्ट आर। मतलब उनके फ्रेंड्स करते हैं तो उनको ऑब्वियसली करना है, तो उनमें वो इंटरेस्ट रहता है और उनको उसमें टाइम, फिर ऑटोमेटिकली उसमें टाइम डाल देते हैं। आपको उस चीज में इंटरेस्ट होना जरूरी है, इंटरेस्ट हो ना हो आपको वो करना जरूरी है, ताकि आप में वो इंफॉर्मेशन आ जाए। And it is a 5-minute thing. YouTube पे it is not difficult. आप गूगल कीजिए, YouTube कोई भी नाम, कोई भी जो भी गेम का नाम होगा, अभी फायरफ्लाई, कोई मेरे बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनसे मैं बात करते रहती हूँ, अभी फायरफ्लाई एक बहुत अच्छा है, फिर so many speed of what is that race and all those things. So you just have to go immediately। मैं बच्चे से बात कर रही थी, उधर मैं ये खेलता हूँ, मैं देख रही थी वो गेम क्या है, मैंने समझ लिया, एक लाइन में मैं समझ गई क्या गेम था और मैं उससे बात कर रही थी as if I played the game. So it's not difficult, लेकिन आपको उसमें टाइम डालना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको पूछना पड़ेगा, और किसी से, गूगल से हम चाहिए तो कभी हमसे अक्षय को हमेशा, चलो हाँ कोई भी चीज आप पूछ लीजिए टेक्नोलॉजी के बारे में। चलो मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। आपने मेरी क्या बोलते हैं आग लगा दी है, वैसे बोल सकते हैं। एक बच्ची आई, 16 year old girl came home, right? 16 year old girl came home, very savvy, techno, mother is in, I think she was a journalist or something, super 16 year old, no soup में क्या बोलते हैं, एज, कटिंग एज बोलते हैं। मुंबई में, साउथ बॉम्बे, एब्सोल्यूट टेक्नोलॉजी एंड ऑल का एंड है वो, राइट? वो आकर मेरे सामने बैठी, मैंने उसने बोला ओके सो व्हाट्स योर, शी वांट काउंसलिंग जरूरत थी, सो आई सेड व्हाट्स योर प्रॉब्लम? सो शी सेड फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर यू जज मी आई वांट टू टेल यू आई एम पैनसेक्सुअल, शी सेड। ओके, पैनसेक्सुअल। सो आई सेड जस्ट 1 minute, okay, so that I can talk to you. मैंने फोन खोला, उसके सामने I opened the phone, I googled it, I said what does it mean to be pansexual? I searched, I found the answer, I said give me 2 minutes, I read it through and then we spoke. Within 15 minutes we could crack the game, and then we were on top with the conversation, and then she could listen, then she made sense. She said nobody has put so much effort to understand me. I said I didn't put any effort to understand you, I just googled what you said. What's so difficult in that? Without judging, I just googled, I said okay fine, let me just google what you're doing, what's the problem? You all got smartphones which you use for sending fake WhatsApp messages on COVID. That's all our smartphones are all about today.
You just have to take care of it. Just use your bloody phones. Everyone I tell that, right? I'm सच में बता रहा हूँ. ये स्विगी जोमेटो वाले घर आते हैं, मैं रास्ते पे चलता रहता हूँ, सर ये कहाँ है, वो कहाँ है, ये एड्रेस. मैंने बोला भाई तेरे पास गूगल मैप है, डाल के देख, 2 मिनट में मिल जाएगा. अरे हाँ, स्मार्ट हो, स्मार्टफोन्स है, थोड़ा फोन से भी स्मार्टर रहिए. दैट्स ऑल इज माय रिक्वेस्ट. एंड हम हैं, एंड अगेन आई एम जस्ट टेलिंग दिस टू प्रणीता एंड एवरीवन, अगर आपको टेक्नोलॉजी पे भी सेशन चाहिए कभी, तो वो भी हम कर सकते हैं. खुशी खुशी आपके सारे टेक्नोलॉजी के प्रॉब्लम आंसर एक ही जगह में कर देंगे. Not just children related. हाँ, that is what I'm saying is the magic of the Satya Sai organization. And again, salute to all the coordinators. You know, ऐसे सेशन में you know everything is provided in the Satya Sai organization. ये कि सिर्फ बाल का श्लोक मंत्र और जप है. ये न्यू एज है, 2021 है, इसमें हम कुछ भी कर सकते हैं, राइट? और आपके यूथ यंग लीडर्स, नेशनल लीडर्स, हाँ. एंड मैं सच में बता रहा हूँ, स्वामी ने एक दिन सच में एक बंदे को बताया जो यूएस से आया था, बोला तू इतना सारा पैसा खर्च के आता क्यों है पुट्टपर्ती, रेडियो से मेरा सब कुछ बचता है, घर बैठ के सुनना एक रेडियो लेके. स्वामी बता रहे थे उसको इन 2008-9. स्वामी टेक्नो फ्रेंडली, आपको क्या प्रॉब्लम है मेरे को अभी तक. और स्वामी इफेक्टिवली 85 ईयर ओल्ड थे उस टाइम को, राइट? सोचिए. And again, young leaderships, the national young leadership team, you guys are more techno savvy than me also. मैं भी 35 साल का बुढ़ा हूँ, आधा बाल व्हाइट हो गया है, ठीक है? Sir, madams, all of you wake up, okay? Technology session for everyone. That's your next project. Yeah, I'm putting a project on you all. चलो, अभी self esteem के ऊपर 15 मिनट डिस्कस करते हैं, फिर we'll open it up for nice question and answer, and then we'll close it out. ठीक है? So, Shruti, please, my voice. So, जब हम सेल्फ एस्टीम बोलते हैं, राइट, कॉन्फिडेंस जो रहता है, व्हाट डू यू फील, मतलब हम अपने बारे में क्या समझते हैं, और हाउ गुड डू वी थिंक, हाउ स्मार्ट डू वी थिंक, हाउ हाईली डू वी थिंक ऑफ आवरसेल्व्स. इसमें like there are some things that comprise of our self esteem. So first and foremost is the physical image, right? How do you look and how fit are you? So you may be very, you may look like fine, you may be thin, the child may be thin and healthy looking, but if you don't have enough stamina to play like a soccer, football or cricket like other friends are playing, then it affects your self-esteem. I know of kids जिनको कोई तो either health problem हो या fitness related stamina कम हो, जिसके वजह से they are not able to be part of a sports thing or a drama thing, because it is about their physical image. That is the first thing. Okay, that's about your, and आजकल में body shaming is very big. Yeah, very big. How fat, even if you are, and it's not just in Bombay, it's not just in India, it is across. Just a few days ago I was talking to someone, my own nephew in US, जो मतलब he's in that 11-12 year age, and उसने थोड़ा सा मतलब weight gain 4 kgs मतलब excess weight था, और वो जाते ही स्कूल में मतलब immediately, and especially he cycles to school, so थोड़ा सा उसका sweat होता है, plus he's a little fat and he's Indian, तो brown color. So this entire thing, image thing has made his problem so big कि उसको एक्चुअली सिर्फ एलर्जिक कोल्ड है, लेकिन ये फिजिकल इमेज की वजह से इट हैज बिकम सच अ बिग थिंग दैट दिस इज अनदर रीजन, मतलब ये ऐड कर रहा है इन सब चीजों को. तो हम उसको तो चेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो नॉर्मल है एक्चुअली. देयर इज नथिंग, ही कैन नॉट चेंज हिज ब्राउन कलर, राइट? देयर आर सर्टेन थिंग्स इन योर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स यू कैन नॉट चेंज. यू कैन नॉट चेंज द नोज दैट लुक्स लाइक दैट unless you do something like Botox and all those things. You cannot change your height as how it is. You cannot change those things. So there is some things that we have to accept, and there are some things which we can work on, and we can work on our fitness, physical fitness. Hence healthy fitness related exercise things should become a normal thing for kids. वो लोग बाहर जाके खेलना चाहिए उनको. I mean, unless apart from the entire COVID जो phase था, that was difficult, but they have to go out and play. Yeah, even put up again, and I'm bringing the same hostel of Swami's model here. So there is nothing to argue with Swami's model. Satya Sai institutions में 6 a.m. to 7 a.m. to 8 a.m. every day was compulsorily to be on the ground. There was no option. You were kicked out of your bed. Even if you're studying,
your book is kept aside. Simple, मैं आपको see we said right, we are very human as you all. So simple thing with Akshay, जैसे कि स्वामी वहाँ पे while he was a part of the hostel, they Swami the only weakness of the boys, I think Swami's boys is food. क्योंकि स्वामी बहुत अच्छे से खिलाते हैं and everything. तो but because they were always active, उनको रोज एक्सरसाइज करना ही पड़ता था, they never would gain weight there, right? After that gets done, and you come know, into go join into jobs. the corporate, जो भी job, कुछ भी करते हैं, you obviously, I mean, especially Lakshay, तो हाँ, मैंने बहुत ज़्यादा किया है, 7 साल I've gotten up early, I've exercised. I don't want to, but we will not stop eating more, right? So that is why he gained a lot of weight. And then literally life has brought us back to the same Swami's Institute, literally Swami's Institute model, where we wake up early, we exercise every day for 45 minutes minimum. So that is the beauty of the model that he's talking about. You have to come back to it. Yeah. So anyway, that's next part of self-esteem is intellectual. Very simple, academics and general knowledge. होना ही चाहिए. That is means स्वामी के बहुत beautiful था कि when Satya Sai Baba was selecting students for, they were defining the pass percentage in the university. So Satya Sai Baba simply said, 70% is pass percentage. So all the teachers were like, oh, Bhagwan, everyone will fail. He said, you're telling me a very simple thing. The portion is 100%. You are telling me people should not even note 70% of it. With 30% we have to let go. I am okay with that. So then he said, no, 35%. Means you're saying, Swami said, means you mean only a person has to study 1/3 of the number of classes that he comes for. And a very interesting take on it. So academics is like you have to do it. That's all. And general knowledge, I think now every kid is very, very good at thanks to their smartphones. Yeah. Socially, smartness. Again, 2 parts to it. Some kids are over smart. Some kids are shy. You have to learn to, bring that balance in the kid. And also communication. Make them talk not in WhatsApp language everywhere. Each. Yeah. Okay, then the next one is emotional stress management. बच्चे now today's kids have उनका stress scenario कितना रहता है? Means वो tantrum वाला जो game है ना, वो 5 सेकंड लगता है tantrum करने में. Every kid knows that today if they scream or they shout or they hit or they bang something or throw something, their parents will give it to them. Right? So that's when we said, in this previous slide, kids are manipulative. They know what to do with their parents. Parents will not know what to do with them. Because why? You know why? Because the parents are less smarter than the children. As per. So let's go back to that discussion. And the last part is spiritually, which is what we said. Up to the age of 16, a human being does not have discrimination. So teaching discrimination to a kid is also a part of boosting their self-esteem. And these are the factors, which is where the maximum control lies, right? How do you improve the self-esteem of a child? I want to take it. First one. Factors impacting, मतलब जैसे हमने first discuss किया कि genetics जो genetically pass on होते हैं, हम उसको change नहीं कर सकते. That is something that we have to accept first. नहीं, वो तो बहुत ही शॉर्ट है, वो बहुत ही लंबा है, बहुत लंबे होने से भी तकलीफ होती है. yes. उसको भी क्या बोलते, लड़की नहीं मिलेगी. हाँ. या लड़की लंबी हो गई तो उसको लड़का नहीं मिलेगा. हाँ. So but first हमको as parents हमको ये accept करना बहुत जरूरी होगा कि there are some things that we cannot change. We cannot change our genetics. The only person who can change that is Swami. He can literally change your DNA. But as everyone has said, that everything which happens is Swami's will. Correct. We act so then we have to learn to accept first our bodies as Swami's will. And trust me, this was something which I was taught in hostel again. They would put us, and this was again something which has come from Swami. Say, हाँ, जाकर ना बाथरूम में जाइए, मिरर के सामने ना खड़े हो जाइए, खुद दरवाजा सब बंद करके खुद मिरर के सामने अपने आप को कंफर्टेबल हो जाइए, अपने आप को देखना 15 सेकंड सिर्फ खुद को देखना. वो नहीं कि बाल बनाते हुए मेकअप डाल, वो पॉइंट नहीं है ये. गेट कंफर्टेबल इन योर स्किन, लुकिंग एट योर. बहुत ही अनकंफर्टेबल होता है. अगर कोई कंफर्टेबल है, वेरी नाइस. बट बेसिकली जैसे नॉर्मली प्लेन बिना एक लिपस्टिक मेकअप हेयरडू के कैसे दिखते हो आप, उसके साथ पहले कॉन्फिडेंट हो जाइए. दैट इज हाउ पेरेंट्स यू हैव टू बिल्ड जेनेटिक एक्सेप्टेंस, हम उसको बोलते हैं. राइट. नेक्स्ट देन इज
then what affects is parents daily behavior. मतलब for example, what are the things that they learn from you without you telling them, correct? आपने Till the age of which foot, no, are they copy paste? You remember you said 2 to 4. 2 So to 5 generally around between 2 to 4, 2 to 5, there is something called as rote learning. मतलब बच्चे जो देखते हैं automatically they learn it. They just like monkeys literally, मतलब they just copy it. आप जो भी उनको सिखाओगे वो लोग सिखाओगे भी नहीं, उनके सामने जो भी दिखेगा वो लोग करेंगे, absorb करेंगे. They'll absorb it like that. So that is the time where they'll absorb everything whether you like it or not. मतलब उन्होंने घर में क्या क्या सुना है, कौन से exclamation words सुने हैं, जो भी whatever good bad words they have heard from anyone, maybe you, maybe TV, maybe neighbor, anyone. आप जिस तरह से बात करते हो, आप अपना टाइम कैसे यूज करते हो. मेरे कोई पेरेंट्स हैं जो मतलब अभी दे आर ऑन देयर वेट लॉस जर्नी, दे आर गेटिंग हेल्दियर, सो दे हैव स्टार्टेड एक्सरसाइजिंग एवरी डे. अभी वो बच्चे ऑटोमेटिकली रोज एक्सरसाइज करते ही हैं, वेदर इट इज कोविड और नॉट. उल्टा अगर बच्चे को आप फुटबॉल क्लास भेजते हो, for example, right, you send your child to a football class, especially Goa is amazing for football, right, but you both are sitting at home and chilling watching this thing, and you can give an answer saying no, I'm working all day so I'm tired, but then you realize that after 3 weeks your kid says I'm tired, I'm bored, I'm not going to the class. But if your kid sees either of you playing some sport on a daily basis or on a weekly basis, go to some club or a gymkhana or something like that, or go to the gym every day or go for a jog every day, then you will see that automatically that kid will last longer in that class. Right? It's very simple. मतलब आप जो उनको सिखाना चाहते हैं ना, वो आप खुद कीजिए, बोलिए नहीं. Okay, so that is that. फिर आप किस तरह से इमोशनली रिएक्ट करते हो सिचुएशन से, आपके जो हैबिट्स होंगे, we all have these habits. मैं ये नहीं बोल रही कि कोई परफेक्ट है, बट इट्स जस्ट इम्पोर्टेंट कि वो आप अवेयर हो जाइए, आप उनको पहचाने, and then just awareness आते ही you know where it is coming from in the kid. The kid has to be one, means जो is a mix of ultimately either father, mother or whatever else situation or environment he's means literally a 3-year-old kid, one of her, she's in a part of a group of parents in some, because of her work. So one day one of the parents says, oh my God, today my 3-year-old child said the F word, the 4-letter F word. When he dropped a small ice cream, he was eating an ice cream, it fell down. Instead of saying, oh my God, the child said the 4-letter F word. Right? Wow, what should I do? So Shruti separately asked her on a chat saying that he must have heard it somewhere, right? That's how yeah, me and my husband use it, when we are on office calls, if somebody makes a mistake. So they heard it somewhere. It's very simple. What's the big deal? So it's just about becoming aware of that. ठीक है, आप जो भी cultural practices डालेंगे with respect to religion, whatever, they learn everything whether you like it or not. ठीक है. So that is about the behavior on the parents or whatever environment. फिर school का जो effect प्रभाव पड़ता है उन पे, it is 50% almost, क्योंकि 50% of the time they are either doing school homework, they are at school virtually या physically. तो आप कौन सी school में डालते हो उनको is very important. And align it to your culture. हाँ. यहाँ पे भी मुंबई में मेरे को बच्चा चाहिए जो एकदम सात्विक रहे, प्रभा ये रहे, प्यार से सबसे बात करे. आप डालते हो उसको एक्सट्रीमली जमनाबाई या बहुत हाई सुपर एडवांस स्कूल में जिधर सारे बच्चे बोलते हैं like literally one kid we saw, बच्चा जा रहा था and the family is very cultured, right? And वो लड़की used to respect her maid like her elder sister, दीदी बोलती थी. फिर उसने अपना स्कूल चेंज हो गया and she went to this international board school, and 6 days after joining the new school, the child threw the bag on the girl's face. Maid threw it suddenly. So then they are messaging us, अरे आज इस बच्ची को क्या हो गया? How has she changed her behavior? You were helping us. So we said, what has happened? No, she has changed her school. Which school? This school. I said, go and check there. We spoke to the girl. She's like, yeah, the other girls, they all spit on the, they throw the plates and they play to spit on the maids. So yeah, maybe I also thought it's okay. Simple. Then the relatives and neighbors. This is a very important choice parents have to make as to what influences you let in your child. Don't get into as we said, आप जो भी आपका दर्जा हो, आप पहले माँ हो, पहले बाप मतलब पिता हो,
then comes every other relationship, right? Then it comes as maybe your son or sister, brother. तो आपको ऐसे डिसीजंस लेने पड़ेंगे इफ इट इज कॉजिंग सो मच इफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट ऑन योर चाइल्ड। और मैंने देखा हुआ है कि जैसे कोई बच्चा था एंड उनके दादा दादी जी घर पे बहुत अब्यूजिव लैंग्वेज में बात करते थे और बच्चे ने वो शुरू कर दिया था, 3-4 ईयर ओल्ड किड, मैंने बोला ना रोट लर्निंग होता है तब। तो मैं उनसे बात कर रही थी बच्चे के बारे में, and then I realized that this is happening. I said, just tell your mother-in-law to not stay with you. You just need to move out. Away. So those are the kind of choices, decisions you will have to make because you are first a mother. Yeah, later a daughter-in-law. Yes. Then there comes उनका फ्रेंड्स के चॉइसेस जो आप उनको ये नहीं बता सकते इससे बात करो उससे मत बात करो, इसीलिए आपको उसमें डिस्क्रिमिनेशन बिल्ड करने की जरूरत है। depends on which age we are talking but about. slowly you have to First you decide whom they should be with or not initially until 5-6 years of age. Then slowly उतने टाइम तक उनको डिस्क्रिमिनेशन इतना विवेक बुद्धि आना चाहिए कि they will be able to decide whom at they 16 should. की रहना है कि नहीं। टीवी एंड सोशल मीडिया हमने बात कर लिया है, यू हैव टू बी 2 steps ahead of it। जब जो कुछ भी वो देख रहे हैं आपको पता होना चाहिए ये क्या है। एंड द लास्ट थिंग इज बाल विकास, व्हिच आई थिंक इज प्रीटी मच एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन To discuss. स्टॉप। ठीक है, सो नाउ यस, सो अभी देखिए ये हमने इतना शेयर किया है, सेल्फ एस्टीम वाला गेम है, और भी हमारे पास कंटेंट है, पर मैं इसलिए मैंने रुका है क्योंकि अभी हमारे पास 20 मिनट है और ये पॉइंट है सेल्फ एस्टीम का, बच्चों को सही दिशा दिखाने का, राइट। अगर किसी को यहाँ पे स्ट्रेस हो रहा है, और मैं वापस यही बोलना चाहता हूँ कि आपके बच्चे को अगर प्रॉब्लम है, आपको कोई चैलेंज हो रहा है, तो यहाँ पे शेयर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लीज मीन्स सब लोग यहाँ पे ये इसको हम साई फैमिली बोलते हैं इसके लिए, राइट। तो प्लीज ओपन अप एंड टॉक टू अस। हो सकता है आपको बाद में सेपरेटली भी रीच आउट करना हो, हमारे नंबर्स हम शेयर कर लेंगे, पर मैं ये चाहता हूं कि जो भी आपका चैलेंज है, मैं ये गारंटी दे सकता हूं इधर 10 और पेरेंट्स का चैलेंज है। ठीक है, गो अहेड। एनी क्वेश्चंस, एनी पॉइंट्स? यू कैन अनम्यूट एंड टॉक, फास्टर हो जाता है चैट करने के अलावा, प्लीज। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। हाँ, बहुत लोग हमको बोलते हैं कि तो अब हम अभी करें क्या, पेरेंटिंग का बेसलाइन क्या है। तो अगेन लकीली अपने सारे बुक्स में, शास्त्रों में, सब जगह सब कुछ लिखा हुआ है, एंड ये चाणक्य नीति में है। 4 सिंपल पॉइंट्स है ऑफ पेरेंटिंग, साम, दाम, दंड और भेद, राइट। साम में सिंपल है, फर्स्ट आप बच्चे को समझाते हो, मत करो मत करो मत करो, समझ गया, कर लिया, ठीक है। मोस्ट पेरेंट्स यहीं पे अटक जाते हैं और बच्चा जो चाहिए करते रहता है, और फिर मैंने बहुत समझाया पर सुनते नहीं है मेरी बात। ये ऑप्शन नहीं है, सुनवाना है बात, राइट। ही हैज टू लिसन, ही और शी हैज टू लिसन टू यू। सो देन यू मूव टू द नेक्स्ट वन, दाम, राइट। यू वांट टू टॉक अबाउट प्रेजिंग द एक्शन। तो ये जो है ना, यू फर्स्ट गिव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट देन। तो दाम का मतलब नॉर्मली लोग बोलते हैं तो फिर हमको तो वो करना चाहिए जो बच्चों को मजा आता है। यानी क्या, सिंपल, यानी उनको बोलो ये आप खा लो, फिर मैं आपको मोबाइल दे दूंगी, आप देख लो, पेप्पा पिग देख लो, या ये देख लो, या 1 और घंटा PUBG खेल लो, बस आप बस खा लो। वो ये इसका मतलब नहीं है। इन अ दाम स्ट्रक्चर, मेरे को बहुत ब्यूटीफुल याद है, हमारे एक ऑफिस के कपल हैं, वेरी वेरी गुड पेरेंट्स। हम लोग उनके साथ एक ट्रिप पे गए थे, सारे बच्चे वही खाने के लिए नाटक चालू, आ रहे, एक बाइट खा रहे हैं, फिर भाग रहे हैं, फिर मम्मी उसके पीछे भाग रही है, वो अपने कैलोरी लूज कर रही है, बच्चा खा नहीं रहा तो वो अपने कैलोरी लूज कर रहा है। कुछ मींस बेसिकली पूरा ये है, मिशन है। वो पेरेंट्स ने उनके बच्ची को इतने सिंपल से सिखा के रखा था। फिर मम्मी ने उसको बोला, देखो अभी क्या टाइम हुआ है, 1:30 PM हो गया है, ठीक है, मैंने लंच का डब्बा खोल के रख दिया है, 1:45 को ये डब्बा बंद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद तुमको खाना नहीं मिलेगा। तुमको खाना है तो ये टाइम में खा लो, फिर नेक्स्ट खाना 7 बजे शाम को मिलेगा, बस खाना, या जो भी है, जो भी है खाना है खा लो, वरना मत।
सिंपल, मतलब वो उसने उस वो बच्ची तब 8 साल की, 8-10 साल की होगी, उसने उसको ऐसे मतलब 3, 4, 5 इयर्स से कंडीशन करके रखा था। हाँ, ये कंडीशनिंग का गेम है। दाम इज यू आप पॉजिटिवली इतनी चीज को रीइंफोर्स करते हो कि ये हो रहा है तो ये होगा, राइट। तीसरा पॉइंट, अगर ये भी ना माने तो देन यू हैव टू गिव, दंड देना पड़ता है। दंड मैं ये नहीं बता रहा कि मार दो पीट दो, जैसे अपने टाइम में बेल्ट लेके पिताजी मारते थे, वो नहीं करना है। पर कोई भी जो पनिशमेंट आप दे रहे हो उसका एक रिवील्ड इन एडवांस होना चाहिए कि पहले से ही। अभी रिसेंटली जो संडे को हम एक डिस्कशन कर रहे थे, बोल रहे बच्चे को ब्रश नहीं करना, सिंपल है। बच्चे को नहाने का हो सकता है 2 दिन में एक बार नहाने का मन करे, वेरी नाइस चाइल्ड, वेरी नाइस किड, पर बट डिसिप्लिन में थोड़ा सा ये ऊपर नीचे एंड हर किड में होता है। तो मैंने बोला बहुत सिंपल है एंड ये काम करता है फ्रैंकली। एक आप व्हाइट बोर्ड खरीद के लेकर आइए, रख दीजिए कि ये 10 देयर आर 10 एक्टिविटीज इन द डे व्हिच आर कॉल्ड नॉन नेगोशिएबल। इसमें बच्चे को चॉइस ही नहीं है, ब्रशिंग, फूड, बेदिंग, स्टडीज फॉर एग्जांपल, मे बी सम थिंग्स, वन पर्टिकुलर थिंग इन द हाउस, हाँ कुछ घर पे जैसे प्लेट्स ड्राई करना, ऐसे 4-5 चीजें ये नॉन नेगोशिएबल है। मींस इसमें बच्चे को ऑप्शन नहीं है करने के लिए कि नहीं करना ही है। बच्चे को वो क्यों बोलेगा तो आप आंसर रेडी रखिए, बट ये ऑप्शन नहीं है, राइट। नहीं करने का ऑप्शन नहीं है। और बोलेंगे अगर आपने ये नहीं किया तो जो चीज बच्चे को पसंद आती है या जो भी है वो उसको नहीं मिलेगा। आप खेलने नहीं जा सकते या कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद बच्चा रोए पीटे कुछ भी करे, एक बार आपने इसको इन एडवांस एक्सप्लेन करके रखा है, इट इज फिनिश्ड। दंड का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, रिस्पेक्टफुली, बच्चे की इज्जत नहीं उतारनी है, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट है कि अगर कुछ भी ना हो पर बच्चे को यू हैव टू मेक हिम डू इट, फिर आपको भेद करना पड़ता है, जो है मैनिपुलेशन, जो बच्चा आपके साथ हर 15 मिनट करता है। मम्मी से नहीं सुनी, पापा के पास गए, पापा मैं आपसे बात नहीं करूंगा, इमीडिएटली आइसक्रीम। मम्मी ये क्या है, बहुत गंदी मम्मी हो, बाकियों के मम्मियां अच्छी होती हैं, मम्मी को वहां पे बेस्ट मॉम का अवार्ड चाहिए, तो जो चाहिए कर लिया। बच्चों को भेद आता है, भेद इज मैनिपुलेशन, राइट। पेरेंट्स को लगता है कि अरे यार हम कैसे करें, राइट। यू हैव टू बी स्मार्टर देन योर चाइल्ड, दैट इज द आंसर टू दिस। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इस टेक्निक में है कि ये इसको इस ऑर्डर में फॉलो करना है। साम पहले, फिर दाम, फिर दंड एंड ओनली देन भेद। मोस्ट पेरेंट्स सीधे जाते हैं दंड पे, बूम मार दिया, वरना सिर्फ साम पे बात करो, नहीं सुन लिया फिर जो करना है कर लो, वरना सिर्फ दाम पे। बच्चे आप ब्रश करोगे आपको चॉकलेट देंगे, आप पढ़ाई करोगे आपको पोकेमॉन देंगे, वो नहीं है ये कॉन्सेप्ट। इसमें वो ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात ये है कि जो भी तुम बोलते हो कि ये तुम करोगे तो ये होगा, ये नहीं करोगे तो ये होगा, वो कंसिस्टेंट होना चाहिए बिटवीन द फुल फैमिली। मतलब वो अप्लाई नॉट नेसेसरी मींस एवरीबॉडी शुड डू द सेम थिंग। मतलब पापा ने भी ऐसे ही करना चाहिए, अगर उसने ये नहीं किया तो वो भी वही फॉलो करेंगे कि he will punish him or he will नानी दादी सबको घर में सारे दूसरे adults को same, they should follow the same pattern, they should all discuss united front and हर टाइम ये मतलब कंसिस्टेंट होना चाहिए, रेगुलर यही फॉलो करना चाहिए। दूसरी बात है, जब हम बच्चों को प्रेज करते हैं, when we are talking of self esteem, हम जब प्रेज करते हैं, there is a way to praise the child so that the self esteem gets raised and the child doesn't become proud or over smart. So the way to do that is, so for example, मैं भेद एग्जाम्पल प्लीज, फॉर एग्जाम्पल भेद में सिंपल रहता है, जैसे अगर आपको ऑफिस में हो, राइट, आपके बॉस ने आपको बोला भाई ये रिपोर्ट मेरे को दे दे, ठीक है। सेकेंड, उसने आपको प्यार से बोल दिया चल आज शाम को मैं तेरे को पार्टी लेकर जाऊंगा, तो फटाफट काम कर ले वरना जल्दी निकल जा काम करके। तीसरा है दंड, बोलता है गालियां मिलती है, मेल मिलता है। चौथा है भेद, भेद में उसको एम्प्लॉय को पता है मैंने ये काम नहीं किया तो ये साल इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा, प्रमोशन नहीं मिलेगा। बॉस पीछे से गेम खेल के मेरे को सबसे प्यारी जो चीज है मेरी, व्हाट आई लव द मोस्ट, he will take that away from me. It is basically manipulating. If there's some what's that called, appraisal or something. If anything, whatever, appraisal or whatever, usme you will get a mark. He knows how to play your game, right? My child, for example, my child often hates practicing maths. Any idea on how I can work on the subject, right? So the first question is, why does he hate practicing math?
One is that you know weaknesses तो होंगे ही बच्चों में, so how do you work on it, how do you understand कि problem क्या है, whether he is not understanding it enough, then there are ways to explain. Children have three types of learning abilities. मतलब पहले सिर्फ सुन के, दूसरे है visual जो देख के, and some are kinesthetic जो उनको ये करना पड़ता है, ये 3 हो गए, ये 2 हो गए, 3 में से 2 निकाला या ऐड किया, तो उनके वो टाइप्स होते हैं लर्निंग के. फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज दैट प्रॉब्लम एग्जैक्टली क्या है, उसको इंटरेस्ट नहीं है कि उसको समझ में नहीं आ रहा. एंड देन फाइंड आउट अ टीचर. समटाइम्स कभी टीचर्स जब हाँ बहुत मतलब अनफॉर्चुनेटली देयर आर सम टीचर्स हु डीमोटिवेट यू फ्रॉम सर्टेन सब्जेक्ट्स, तो वो भी हो सकता है प्रॉब्लम. दूसरा है उनके फ्रेंड्स को पूछो कि यू नो फाइंड आउट फ्रॉम द फ्रेंड्स कि उनको भी ऐसे लगता है, हिज फ्रेंड सर्कल पर्टिकुलरली डोंट लाइक मैथ्स, तो क्या प्रॉब्लम है. सो यू विल नीड टू फिगर crack the problem basically, and depends on whether you have liked maths also in the past. That also is a genetic issue also. Either of the parents don't like maths, then that also passes down. Like that's also possible. So I think this is where we are not going to share any more slides. I think we are pretty much done, and this is it. So I was just telling about how do you sorry, and again I want to, and I was just thinking about this, there was this point where a person said that they're very proud that their son is smarter than me. Yes. And I'm very happy that the son is smarter, but please don't say this. That's what. So how do you see कि वो self esteem बना रहे, either वो बहुत low on confidence ना हो, या over smart ना हो, या proud ना हो कि okay, I am, my dad says or my mother says I am intelligent, most intelligent, I'm beautiful, I'm pretty, I'm delicate, I'm a princess, I'm papa ki pari, I'm so many things, right? So how do you avoid this from happening? तो आप उनको जब encourage करते हो ना, उनकी जो positive point है, जैसे activity या virtue जो बोलते हैं, जो value बोलते हैं कि he's so suppose for example, it's a simple thing, like the same thing, like a maths problem, right? If he solves the maths problem, you don't say, oh, you are so intelligent. If he solves anything or you think it, don't use the adjective intelligent, beautiful, pretty. You focus on the effort that he took to solve it. You actually, you want him to repeat that same value or behavior later. तो उस चीज में आप उनको हाईलाइट कीजिए कि तुमने ना इस बार जैसे तुमने अच्छे से बैठ के इतने पेशेंटली समझा है, you have taken efforts to understand from your teachers. That is, I really commend that about you. You have taken efforts and you are a hard-working kid. You have that kind of motivation to do it. You have that kind of dedication. ऐसे बोल, not that oh you are the smartest kid. ठीक है, that is, it is a positive reinforcement, but it can फिर थोड़ा सा उनकी ईगो को ये कर सकता है. फिर क्या होता है ना, कभी हमने देखा है कि जब वो बाहर जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, अपने फ्रेंड्स के सर्कल्स बनाते हैं, तब उनका एक्सपेक्टेशन वही होता है कि मैं वही स्मार्ट, वही प्रिटी, वही इंटेलिजेंट लड़की लड़का रहूं जो मुझे घर में बुलाते हैं. But there are so many other people. You go out in the world and it's filled with better and better people. You can't keep comparing, right? So they have to know, they have to be confident of the values that you have given them. That was the point. Anything else? We've got a few minutes. We are open for questions. So please, even feedback, whatever you want. Come on, now at least you can unmute and say. Come on, no shyness now. Sairam? Yes. Yeah, really a very informative session. I just loved all the points. मैंने तो screenshot लेके रखे, so that PPT भेजेंगे. We'll share the PPT with sister. Yeah, it's really interesting. Practicing is quite difficult. I try my best actually. Being Swami like is very difficult, but still I've got a very good idea. So the point is not to, again, Akshada, the point is not to be like Swami. The point is to take best practices from everywhere. I'll give you a very simple example, right? People know, many people who work in offices and then are parents at home, they have these completely bipolar practices.
In office, you are a very strong boss. You're very good at taking 20 employees, making them achieve projects in time, motivating them, this, that. At home, as you know, as there are problems, simple things like I can't get my child to eat dinner. That's the answer. So I asked them a simple question. I said, in office, what happens? No, I can motivate a team of 20 people. So I said, then why not at home with a kid who is 1/3 your age, half as smart as your entire team? Why can't you do it? No, but this is home. I said, but you are a boss. You have the same knowledge. Bring the best practices from there here. So in the same way, if you learn something anywhere, and we all learn at different places. We learn from our parents also how to be, how not to be. So take some best practices from each place and apply them. Don't. I'm reminded of a model, जो pack model बोलते हैं, parent, adult, child, pack model. So it's very interesting. अगर he's the child and I am the parent, okay? You can choose as a parent what kind of role I want to take so that he listens to me. For example, this maths project thing. Let's take this practicing math problem as the problem. Correct. So now suppose I take on the parent role and I say, you are not good at this, you need to get this done. And if you don't do this time, you don't get this much marks, you are going to fire, whatever. So when I take up the parent role, what happens is automatically he will take up the child role. Either he will protest and he'll never do it, or he'll go into a shell. He'll become very low on confidence, right? Because he knows he cannot do it because there's some problem. So there is a parent and child. If I choose to be an adult and I treat him like an adult, okay, let's sit together. Let's discuss what is the problem. First, let me understand what is the problem you are facing. So you discuss it openly, like and treating him as an adult. So when you take up the role of adult, automatically he'll come to that same level. So it's interesting to know. And the third is when the parent becomes the child. Yeah. For example, if you want your child to, your child is deciding to marry someone or going in a relationship with someone. So in the parent becomes the child, starts crying, "Hey, तूने मुझे छोड़ दिया, ये क्या हो गया? इसी के लिए तुझे बड़ा किया था," and you make this full big drama like a child throws a tantrum, right? Then suddenly the child has to come and say, "Mother, you are not listening to me." And then the child becomes the parent and is trying to, boot the parent. So the best way is to, become an adult conversation all the time. Like I said, like that mother telling the child that the box of food will be open from 7:30 to 7:45, brother. You can come, eat. If you eat, you eat. If you don't get it, you don't eat. That's all. It's like a restaurant में waiter telling, sir, आपने 9 बजे तक order डाल दिया, खाना मिलेगा वरना नहीं मिलेगा. Adult to adult conversation. Simple. You have to try all this. It is trial and error. And मैं आपको ये guarantee देता हूँ कि you will be a villain among your children at the end of this. इसीलिए also I didn't want your children to attend this. आप villain बनोगे. पर ये बहुत important चीज है, याद रखना. And this I think I will close out with this point. हमारे टीचर्स ने हमारे एक वार्डन सर जो थे, हर छोटी चीज पे बजा के पेरेंट जैसे छोटी छोटी गलतियों पे तुम लिटरली रूल्स, फुल स्केल स्ट्रिक्टनेस. तो व्हेन वी वर लीविंग द कॉलेज, ही कॉल्ड ऑल ऑफ अस एंड ही आस्क्ड अस, हु इज द मोस्ट हेटेड पर्सन इन दिस वर्ल्ड फॉर यू? सो वी ऑल वर साइलेंट, वी स्टार्टेड लाफिंग. सो ही सेड, इट इज मी ओनली, आई एम द मोस्ट हेटेड पर्सन. ही सेड, the warden said, I am the most hated person. So we said, sir, no. He said, no, don't worry, you don't need to lie. I know you guys hate me. But he said, do you really think I hate you? He asked. He said, do you really think I hate you? We said, we don't know, sir. He said, guys, I love you. Then we said, then sir, then why do you behave like this to us? He said, Swami called me once, right? And he said, whose children are these? Right? He said, Swami, these are your children. Like all of you have also said, when we asked, क्यों आपने बच्चे को पैदा किया? So you said, स्वामी की देन है, स्वामी का गिफ्ट है, all that. So Swami has given you this child, right? So the same way he said, Swami, these are your children. Fine. Okay. So when they have come on this earth or when they have come to this college, उनका क्या धर्म है? तुमसे प्यार करना कि मुझसे प्यार करना? स्वामी ने पूछा. तुम्हारा उनका एम क्या है? बच्चों को स्वामी से प्यार होना चाहिए कि पेरेंट से प्यार होना चाहिए या वार्डन से प्यार होना चाहिए? So they said, no, final this is to go back. Final this thing is to go back to Swami. अब जैसे किसी ने बोला. For that they have to love Swami. So उन्होंने बोला, नहीं स्वामी, they have to love you. तो स्वामी ने बोला. तो फिर इतना याद रखो कि उनको भगवान से प्यार करने के लिए, so that they love God. If you have to become a villain, and if they hate you, it is okay. Because same thing, because they don't know what is good for them. You have to tell them what is good for them so that they can go ahead.
सो वेरी इंपॉर्टेंटली, जब आप लव बोलते हो, पेरेंटिंग, व्हाट डज इट मीन टू लव योर चाइल्ड? टू लव योर चाइल्ड इज नॉट लाइक अ फेसबुक लाइक, फेसबुक में आई लाइक दिस मॉम, यू आर द कूलेस्ट, यू आर द बेस्ट मॉम, ये वो सब जो ब्यूटीफुल फेवरेट लाइन रहता है ना, माय मॉम, मॉम को भी रहता है आई एम द मोस्ट अनकूल मदर, आई कांट बी दैट, बच्चे हैव टू लव मी, नॉट इवन दिस बच्चा, ऑल द अदर बच्चा आल्सो हैव टू लव मी एज अ पेरेंट, सो दैट यू नो, एंड मैं इतना बच्चे को प्यार दूंगी। बच्चे को बिगाड़ना ताकि बच्चा आपको पसंद करे, पसंद, लाइक्स मींस टू डू, पसंद है, और प्यार, प्यार वो होता है जो हम बच्चे के लिए जो सही है करना। अगर बच्चे को वो पसंद, और बच्चे को वो पसंद आए या ना आए वो इंपॉर्टेंट नहीं है, स्पेशली टिल द एज ऑफ 16, बच्चे के लिए जो सही है वो करना, और ऐसे बच्चे को बड़ा करना है कि 16 के बाद वो खुद डिसीजन ले पाए कि उसके लिए क्या सही है क्या नहीं है, उसको आप छोड़ सको। मोस्ट पेरेंट्स ये करते नहीं है, तो फिर 25-30 के एज पे भी वो चाइल्ड को कॉन्फिडेंस नहीं है कि इस लड़की से शादी करूं या इससे शादी करूं या ये कोर्स करूं या ये जॉब करूं, क्योंकि पेरेंट्स ने इतने शेल में रखा है ना, खुद के प्यार के जाल में, कि वो डिसीजन ही नहीं ले पाते आफ्टर सम टाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्यार का डेफिनेशन हर दिन बैठ के डिसाइड कीजिए कि बच्चे से प्यार करने का डेफिनेशन क्या है, फिर ये पेरेंटिंग प्रोजेक्ट को कोई मेल मिलता है, उधर से सेल्फ एस्टीम वेस्टीम सब कुछ इज अ एंड रिजल्ट, वो होता ही है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है डिफाइन करना कि ये क्या, ये बच्चे के लिए सही है कि ये मैं बच्चे से लाइक्स के लिए मैं काम कर रही हूँ, कम काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, फादर मदर बोथ। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट टू डिस्कस every time you take a decision for your child. Is this because I love him or I want him to like me or her to like me? Once you decide that baseline, parenting is very, very clear in everything. Not necessarily easy. Yeah, not necessarily easy. That's why, frankly, I'm saying, हमारे पास वो guts नहीं है to become parents. Openly बता रहा हूँ, मेरे को कोई शर्म नहीं है कि पेरेंटिंग इतना बड़ा प्रोसेस है। एक जीवात्मा जो भगवान ने दिया है, उसको वापस भगवान तक भेजने का जर्नी इज सो अमेजिंग। तो ये आप लोगों ने जो ये गट्स लेके ये प्रोजेक्ट संभाला है, ऑल द बेस्ट टू यू, एंड आई एम श्योर यू विल डू वेरी वेल, स्वामी ताकत देंगे। पर ये फंडामेंटल्स को कभी मत भूलिए कि प्यार क्या है और लाइक्स क्या है, उधर से सारे डिसीजन इजी हो जाते हैं। यस, थैंक यू। हमने आपका टाइम बहुत बर्बाद किया है, इफेक्टिवली 90 मिनट्स ऑफ बर्बादी। सो या सॉरी अबाउट दैट, 92 मिनट्स हो गए एक्चुअली यहाँ, क्योंकि वो 5 मिनट का हमको एक्स्ट्रा इंट्रोडक्शन मिल गया जो था नहीं। अभी तो कोई बात कर लो, अपना चेहरा तो दिखा दो, इतनी क्या शर्म है, बाप रे। गोवा इज रियली, आई एम गोइंग टू टेल यार, मैं गोवा पार्टी स्पॉट लगता था मुझे, लोग एकदम खुशी खुशी खोल के। अभी आंटी को, yeah, and Shalma auntie, you are just messaging there 1:1. You can show your. She opened. Yeah, she opened once, but come on, thanks a lot for the feedback, though. You've been very active. I'm just joking. Thank you, ma'am. Thanks. Nice to see your face. And it doesn't matter if you're 50, by the way. In your 50s, you might be. My grandmother is 85. I'm just telling you. My grandmother is 85, and last week I bought her a Samsung A22. She has learned to send GIFs and memes on it. I'm not listening to any 50s story anymore. My grandmother is the best. I can send her to take tech lessons for you also. No, nothing works. Sorry. Sir, please take technology session also. 100%, ma'am. And you can connect with us separately also. But you've got youth here who are proudly saying they are the national leadership program. So they are going to take it. You can demand it from them. Sure, sir. Yeah, demand it. Yeah, they've got nice, amazing youth here who are bringing like mad people like us to talk. So anyway, it's fine. Yes, any other feedback, people? Come on, it is feedback to de do, rating to de do. Yeah, Shreya, you wanted to say something, please. Shaira ma'am, अगर कोई पेरेंट्स को क्वेश्चंस हो तो as per the timings we'll conclude the session now. अगर कोई भी क्वेश्चंस है तो हमें व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजिए पेरेंट्स, और we'll be sharing to you. We'll be back to that. We are okay to take another 10 minutes of questions also if required. I'm just saying. Okay, then fine. अगर किसी को है, किसी भी पेरेंट्स को क्वेश्चन है या तो भेज दो। हाँ, सॉरी, अगर चाहिए तो, अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ भी सकते हैं, नो प्रॉब्लम।
ठीक है, वी कैन क्लोज आउट देन। और कुछ क्वेश्चंस रहेंगे तो सेपरेटली आप हमको एक सेट भेज सकते हो। एंड या आई थिंक हु इज दैट टीम, एडमिन टीम कैन शेयर, या प्रणीता समन प्लीज शेयर द नंबर्स। आप नंबर्स कभी भी शेयर कर सकते हैं हमारे साथ, एंड हमारे नंबर्स आप इन टीम के साथ भी शेयर कर सकते हैं। हम कभी भी 1-to-1 आंसर्स भी कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। थोड़ा हो सकता है टाइम लग जाए। मेरा नंबर दे देंगे प्रणीता, यू कैन गिव माय नंबर, क्योंकि इनका क्लिनिक के लिए चलते रहता है। बट या प्लीज, ओके ब्रदर, we can close. Thank you, Sarah. Om Shri Sai Ram, offering my most humble salutations at divine lotus feet and my loving Sai Ram to one and all. Firstly, we offer gratitude to our beloved Bhagwan Baba for bringing us together to share his legacy. With his blessings and grace, we are able to make this event what it was. It is my privilege to propose the vote of thanks for today's insightful session. Myself, Dr. Shreya Pavaskar, on behalf of Mahila participant of Shri Satya Sai National Leadership Program for Self-Transformation, Batch 2021, I extend my most sincere thanks to our beloved Bhagwan for this divine opportunity. Next, I would like to thank our today's speaker, Dr. Shruti Ma'am and Akshay Kamath sir, for spending time with us from their busy schedule. I want to specially mention one thing about them, that at a very short notice, they both agreed to share their valuable knowledge with us. Sairam ma'am, Sairam sir, I feel Swami only might have planned this for us. Today we had an opportunity to hear your thoughts, and this will surely be going to encourage us in our future lives. We got an idea as how to boost our child's self-esteem, and your thoughts have enlightened our minds and have shown us a new path. Thank you once again, Dr. Shruti Kamath and Akshay Kamath sir. My sincere gratitude to all the parents for their support. Without your support, this would have not been possible. I'm also thankful to our state president, Mahesh Pavaskar Bhai, and vice president, Saish Gandhi Bhai, and Balvikas Gurus for their support. Remember that every child is unique. Appreciate and encourage your child. Start making a list of your hobbies. As the famous quote goes, all of us are talented in our unique way. We just need to recognize our capacity and develop our talents to their full potential. So the activity for this week is exploring your child's hidden talent, or do something creative with your child, or send us photos in our WhatsApp group. इस सप्ताह की एक्टिविटी यह है कि आप अपने बच्चों के साथ कोई भी उनकी प्रतिभा को खोजें, या उनके साथ कोई भी रचनात्मक कार्य करके हमें आपके फोटोज भेजिए. Also, our next parenting session will be held on 10th October 2021 on the topic to assist and educate parents to develop the congenial environment for children so that they can grow mentally to their best abilities, by Shami Rasaikar. Please make sure you all attend the session with the same enthusiasm as today. Jai Sai Ram. Om Shanti, Shanti, Shanti. समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु. समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु. समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. Sai Ram. Sai Ram. Thank you. Have a good evening. Thank you. Thank you, brother.